Good evening, everyone. Can you hear me? Hi everyone. Very good evening. Hi Vishal sir. Good evening. Good evening. All right. So just allow me 1 minute, just Sure, sure. a few seconds, and we'll start. Okay. Okay. All right. So I believe we are good. So let me share my screen, and then we'll start. All right. Hope my screen is visible, right? Am I audible? Right. Yes, now it is. Yes. Okay. Great. So today's very special discussion we are going to have do here on our this live session. So thanks everyone for joining this session, right? So I would like to hand over this session to Mr. Vishal sir. So he will take it forward. Hello Vishal sir, it's up to you. You can just start about Okay. your like brief Thank you. introduction and Thank about you. Shall we yeah. shall we start, or shall we give it a minute or two for other people to join, because I see that people are joining in, so Yeah, that we can wait. We really. can wait for 1 or 2 minutes more, then we can start. Sure, sure. Okay. In the Okay. meantime, I see there are new people today as well. Abhay was there yesterday. I'm not sure. Debashish, Neil, Sham, Shruti, Kumarjit. Yeah, lot of people are new here. So if I know many of them, but if you want to take like a discussion, introduction, you can take them. There is no problem. Yeah. So whoever wants to, just a line or two lines about if you're a student or an experienced professional, probably that will help us, define the conversation better for everyone's interest. So just a line or two. So my name is Vishal. I am with GUI Net Technologies, and I handle a lot of things on behalf of GUI Net Technologies, but training is not one of them. So that's what I heard from yesterday's session, since I started it yesterday. So I am not a certified, trainer as of yet, but I handle other aspects of the operations. So whoever wants to, just share about yourself, a line or two. Just Yeah. So sir, can we have this conversation as per the students, as per the enrollees feedback, whether in English or Hindi, whatever they are comfortable with? okay, so I believe, sir, your mic having some disturbance. I believe. Can you hear me now? Yeah, it's better. Okay. All right. So still, I believe some disturbance in mic. Now it looks stable. All right. So anyone can start, like Pawan, Abhay, Aleem, Arman Khan. Anyone can just introduce yourself, like, because this is a very open session for today. Hindi or English, aap jisme comfortable. Yeah, you can start. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Hi, Pankaj sir. Hi, Bisal sir. Yeah, Devasis this side. So, Hi, Devasis. yeah. So currently, I'm working as a network security analyst in at Vodafone, and I have completed my graduation. After that, I completed few professional course also, including CCNA, CCNP, and I also done some of this firewall courses from Pankaj sir on Palo Alto and Checkpoint firewall. And in current network, I'm working on multiple firewalls like Cisco ASA, Checkpoint, Netscape firewall, FortiGate, Palo Alto, and F5 GTM and LTM devices. That's it. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Devasis. Yes, Pawan. Or for that matter, anyone else. Anyone can continue. So आप लोग बिल्कुल comfortable रहना है, आप लोग को tension लेना है. हाँ, देखो, ऐसा एक कोई, तरीके से you मतलब just think about कि if you're going for the interview preparation, right? So you just have to, introduce yourself, right? So be comfortable here. We are not going to judge anyone like आप क्या बोल रहे हो. Like we are going to help because this is especially designed for the professional tech show, right? So we are going to give the insights. How Hello, the team. communication. Yeah. Hello, Arman. Appreciate. Yeah, continue. Hello, sir. Arman this side. Yeah, Arman. हेलो अरमान. अरे कोई जरूरी नहीं यार अंग्रेजी में बात करनी, हिंदी में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अरमान आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर.
I think Arman network में issue है, got dropped. पवन का mic चालू है, please you. हाँ. All right. So Aleem, Gajendra, Aleem कल थे ना. yeah, Gajendra, Aleem, Kamarjit, Neil, Syam, Smriti, anyone can, if you want to share some insight, you can share. Hello. I'm Yeah. audible, sir. Hello. Yeah. Yes. So first of all, a very good evening, Pankaj sir and Devasi sir and everyone. Yeah. Hello. Yes. Let me mute Vishal sir. Yeah, you can continue, Syam. Yeah. Actually, my name is Shyam and I'm working at Ericsson India Global Private Limited and having 6-year experience as a network engineer. I'm working as a Bharti Airtel project, and I have completed CCN and CCNP, and already Palo Alto training is going on by Pankaj sir. So that's Great. Good. Thank you, Syam. Thank you. Most welcome, sir. All right. Anyone else? Saurabh, how are you? I'm good, sir. How about you? Good. How is your life is going on and other stuffs? Also, All well? also good. How about you? Good. Yeah. You want to share something to our your colleagues, like who is like wanted to just build their career in the networking domain or security domain, because you guys are very experienced, right? Yes, so I can see a lot of experienced people are here. Yeah. Experienced people should share their experience that so that new people who do not have that kind of an experience can gain from and probably have a better understanding of how life works after you gain, say, 5, 7, 10 years of experience. Yeah. Saurabh having good experience. He is in I believe good MNC. So yeah, Saurabh, if you want to share something inside, you can share. There's no problem. You can share any of the whatever feel you comfortable. It's okay, definitely. Language ko issue nahi hai yaar. I speak 9 Indian languages, so you can in any language that you're comfortable with. Yeah, okay. I prefer only Hindi language because I am Indian. Yeah, good. We all are Indian here. No problem. Yeah. Basically, जो भी अभी नए कलीग्स हैं जो नेटवर्क डोमेन में आने रहते हैं या नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आने रहते हैं, उनके लिए अभी जो या अभी जिन्होंने करंटली अपने ग्रेजुएशन की या 12+2 या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वी फोकस ऑन बेसिक टू एडवांस. हमारा जो बेसिक कोर्स होता है, जैसे छात्र बता रहे होंगे, CCNA होता है. CCNA, CCNP एंड एक फायरवॉल कर लो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आज के टाइम में माना जाता है. बिकॉज विदाउट आपको राउटिंग स्विचिंग की नॉलेज तो है, आप मानते हो, बट विदाउट सिक्योरिटी आप जीरो हो. कंपनी को ऐसा इंजीनियर चाहिए जो आपको आप राउटिंग स्विचिंग भी हैंडल कर लो और उनकी सिक्योरिटी भी मैनेज कर लो. Right. Completely agree, Saurabh. Right. So the situation in a market, yeah. आपकी थोड़ी वॉइस लो हो रही है सौरभ, थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लीजिए पास में. आई थिंक थोड़ा सा वॉइस लो हो रही है आपकी. आप बताइए. आज के टाइम में डिमांड है, जो जैसे अभी जो डिमांड मेरे अभी, जैसे मैं न्यू जॉब की सर्चिंग कर रहा हूँ, तो फोर्टीगेट फायरवॉल की डिमांड बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं पता क्यों. मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं लीव कर दिया है कि या बिल्कुल ही छोड़ दिया है कि पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया. टेक्निकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कभी भी स्टडी छोड़ नहीं सकते. डे बाय डे आपको ग्रो करना पड़ेगा. इसको जैसे कि मैंने अभी सर को बोला था CCI करवा दे, अभी उसके पास सर के पास टाइम नहीं है CCI के लिए. कोई बात नहीं, कराएंगे सौरभ, उसको भी कराएंगे स्टेप बाय स्टेप. थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं होता, बट डेफिनेटली विल स्टार्ट वेरी सून. ओके, जैसा हमने डिस्कशन किया. या बात है CCI के लिए लैब जो है, जो अभी हमारी जो लैब है अभी, और उससे ज्यादा बिल्ड होने वाली है. ठीक है, फोर्टीगेट फायरवॉल का न्यू टीचर आए हैं, जो मैंने अभी देखा था. फोर्टीगेट फायरवॉल भी अच्छा चल रहा है अभी भी. मैं ये कहूँगा कि फोर्टीगेट फायरवॉल एक फायरवॉल का कॉम्बो मास्टर प्लान आता है, जिसमें आपको चेक पॉइंट, फॉलो आल्टो फायरवॉल, फोर्टीगेट फायरवॉल, F5 लोड बैलेंसिंग,
इस तरीके से टेक्नोलॉजी आपको सिखाई जाती है। ठीक है, बेसिकली जो डिमांडिंग में दो ही है अभी फिलहाल। आप मास्टर नहीं करना चाहते, मास्टर कॉम्बो बाय नहीं करना चाहते, यू कैन बाय फोर्टीगेट फायरवॉल और पोलो अल्टो फायरवॉल। और आपको नेटवर्क इंजीनियर में जाना है तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैंने अभी फिलहाल बोला कि अभी आप बिगिनर हो तो सीसीएन है, सीसीएन पे प्लस एक फायरवॉल, एनी फायरवॉल, फोर्टीगेट फायरवॉल या पोलो अल्टो फायरवॉल आपको कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी के लिए यू कैन गो इन सीसीएन पे सिक्योरिटी, ECS12, एथिकल हैकिंग जिसे हम बोलते हैं, एथिकल हैकिंग कर सकते हो, पेन टेस्टर कर सकते हो। पेन टेस्टर भी एक है, बग बाउंटिंग जो आज के टाइम में बड़ी अच्छी है, बग बाउंटिंग पेन टेस्टर वेरी गुड गुड है। ठीक है, और अभी देखा होगा आपने कि हमारा जो एप्लीकेशन डेवलप हो गया, एप्लीकेशन में अब आपको बेनिफिट ये रहेगा, यू कैन वॉच अवर वीडियो योर मोबाइल फोन एंड एनीवेयर। डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल, इट इज गोइंग टू हेल्पफुल लाइक कि अगर मानते हैं कोई भी हम कोर्सेज वगैरह करते हैं जैसा कि सौरभ ने बताया, सो द फर्स्ट थिंग आज का जो वर्टिकल है दैट ऑल डिपेंड ऑन द मल्टी लाइक वेंडर्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी आती है एंड यू आर गोइंग टू सर्वाइव वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो कोई भी बिगनर है, जैसे मान के चलो कि किसी को जस्ट कॉलेज पास आउट किया, राइट? सो अगर कॉलेज पास आउट किया तो उसके पास दिमाग में दो तीन चीजें होती हैं कि मैं जॉब कैसे लूं, राइट? एंड डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रीम से आ रहा है, राइट? किसी ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, किसी ने आईटी से किया, किसी ने मैकेनिकल से किया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया, और भी किसी डिफरेंट ब्रांच से किया, या किसी ने डिप्लोमा किया, या किसी ने नॉर्मल जस्ट बीए बीकॉम या बीसीए किया हो, राइट? सो सबसे प्रायोरिटी आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब, तो आप लोग जान ही रहोगे कितना डिफिकल्ट है आजकल गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना। कई सारी वैकेंसीज आती हैं जो कई सालों तक होल्ड पे रहती है। सो फिर पेपर लीक हो जाता है उसके बाद। हाँ, पेपर लीक भी हो जाते हैं। सो द फ्यूचर की अगर आपको सरवाइव करना है, सो यू कैन सी लाइक इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हम बोल सकते हैं अभी के रिसेंट डेटा के हिसाब से तो सबके जहाँ पे मैन पावर होता है वहां पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबको सपोर्ट चाहिए, सबका अपना बिजनेस रन करना, और भी लो कॉस्ट में। सो आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ज्यादा आपका करियर ऑप्शंस हैं इन इंडिया, राइट? सो जब इंडिया के अंदर आईटी के बारे में बात करते हैं, करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, दो मेजर सेक्टर्स आते हैं, राइट? पहला जो मेजर सेक्टर आता है उसके अंदर आपके पास जो सेक्शन होता है उसमें होता है कि आपके पास आईटी के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, राइट? सो आप अगर सॉफ्टवेयर में जाते हो तो सॉफ्टवेयर में जा सकते हो, या फिर दूसरा हमारे पास सेक्टर है नेटवर्किंग का, जो सबसे मेजर है। नेटवर्किंग के अंदर आपका सिक्योरिटी आ जाता है, क्लाउड आ जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके पास सी आ जाता है, C++ आ जाता है, जावा आ जाता है, .NET आ जाता है, आपके पास पाइथन आ जाता है, जेसन आ जाता है। सो बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल इन द मार्केट। सो अगर आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग डोमेन में जाना है सो डेफिनेटली यू कैन चूज अ सॉफ्टवेयर। सो उसका भी अपना एक बहुत बड़ा मतलब पोर्टफोलियो है एंड यू कैन ट्रस्ट लाइक लॉट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू सॉफ्टवेयर। बट कई लोग क्या होते हैं ना कि जैसे किसी को कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है कि मतलब यार उसमें बहुत सारा अलजेब्रा करना पड़ेगा, बहुत सारा मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने के लिए लॉजिक समझना पड़ेगा। तो कोडिंग से लोग ना घबराते हैं कि मतलब यार कोडिंग मतलब कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं जावा सीखना है, मुझे नहीं C++ सीखना है, मुझे नहीं पाइथन सीखना है। तो वो लोग ऑल्टरनेट क्या इस टाइप का सिमिलर जॉब्स कहाँ पे अवेलेबल है, लाइक वही सॉफ्टवेयर फील्ड से सिमिलर जॉब कहाँ पे अवेलेबल है? तो दूसरा हमारे पास जो हाई स्किल्ड एंड हाई पेड जो हमारे पास सेक्शन आता है वो हमारे पास है, सॉरी, वो हमारे पास नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर एक ब्रॉड वर्ड है नेटवर्किंग, बट नेटवर्किंग के अंदर तीन चीजें आती है। नेटवर्क आता है, प्लस सिक्योरिटी आता है, राइट? प्लस इसके अंदर आप क्लाउड भी आ जाता था। तीन सेक्शन आते हैं, तो ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको बेसिकली यू डोंट नीड टू एनी काइंड ऑफ द कोडिंग नॉलेज। आपको बिल्कुल अगर एक तो पहली कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक ही होना चाहिए तभी ये सब चीजें कर सकते हो, नहीं। आपके पास अगर लर्निंग का पैशन है, इफ यू वांट टू लर्न, राइट, आपके अंदर किसी चीज को समझने की स्किल्स है, किसी भी चीज को समझने की स्किल्स है, कोई आपको समझाता है, जैसे आप क्लास में 10th में 12th में या बीटेक के अंदर आपका टीचर अगर एक्सप्लेन करता था एंटीना थ्योरी, या कोई भी ड्राइंग थ्योरी करता था एक्सप्लेन, या कोई भी टीसीपी ओएसआई मॉडल को उसने कम्युनिकेशन थ्योरी उसने एक्सप्लेन किया, या जीएसएम एंटीना थ्योरी उसने एक्सप्लेन किया, अगर आप उन सब चीजों को समझ पा रहे थे तो आप समझो कि यहाँ भी आप समझ पाओगे बहुत इजिली। एंड ट्रस्ट में इतना जल्दी आप समझ पाओगे कि यू विल गेट वेरी गुड जॉब इन द टेक्निकल मार्केट।
बिकॉज मार्केट So, बहुत बड़ा है. यस विशाल सर, यू वांट टू if I can कंटिन्यू? add. या So, डेफिनेटली. what Pankaj is saying is, जो मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ लोगों से, तो मैं यही कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरा नेटवर्किंग का एरिना है, जैसा पंकज ने बताया, जिसमें 3 बाइफरकेशन है, नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ब्रॉडली, ठीक है. तो लेमेंस टर्म में अगर मैं लोगों से जब बात करता हूँ, बिकॉज आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो मैं यही समझाने की उनको कोशिश करता हूँ कि पहले जो परसेप्शन था नेटवर्किंग को लेकर के, नेटवर्किंग, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इज स्टिल एन अनटैप्ड फील्ड इन, इवन दो बहुत टाइम पहले से आ गए थे. आप सुन रहे होंगे नेटवर्क इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह के बारे में, और जॉब्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग रिलेवेंट फील्ड से हो, इंटरेस्टेड फील्ड से. ये चल रहा है पिछले 10-15 साल से इंडिया में, बट अभी भी इसका ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज परसेंटेज ऑफ इट्स पोटेंशियल इज स्टिल अनटैप्ड. इट्स स्टिल एन अपकमिंग थिंग, बिकॉज इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, सैस सर्विसेज कहो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज बेसिकली, या फिर इंटरनेट कंपनीज कहो, इनका जो है बूम बढ़ा है आफ्टर, स्पेशली आफ्टर 2015 के बाद से, और 2020 के कोविड के बाद से तो ये और बढ़ गया है. लुक एट द एडटेक कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, इस तरह की कंपनीज जो आती, तो इनमें जो है नेटवर्किंग या फिर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, या फिर आप कहिए क्लाउड स्पेशलिस्ट, सबकी डिमांड बहुत ज्यादा है. बट उसमें अच्छी चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पंकज सर, कि पहले ये परसेप्शन था कि आप किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड से आए हो, आपका कुछ इस तरह का डिप्लोमा, डिग्री, कुछ बैकग्राउंड रहा हो, सर्टिफिकेशन, तभी आप नेटवर्किंग में जाएंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. ये जो है एक इमेज जो बना हुआ था, ये अब क्लियर हो रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कि अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे माय अंकल्स डॉटर इज डूइंग हैज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, बट शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर हर टू गो इनटू सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज ये उसको समझ में आता है, उसका इंटरेस्ट है. सी गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. 12th तक या ग्रेजुएशन. हाँ जी. अब विशाल सर, मेरा क्वेश्चन था कि नेटवर्किंग में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सर, ऐसा मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई जो है मैंडेट तो नहीं है, बट पक्का सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं भी नौकरी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इन जनरल अनसेट ग्रेजुएशन होता है, बट 12th होना इज गुड इनफ, आई गेस. हाँ, सो हाँ सर, बोलिए सर. जैसे क्या है कि कुछ, जैसे हम बीटेक में जाना, बीटेक करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन तो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, राइट. और फिर ऐसे कुछ टेक्निकल नेटवर्किंग के लिए कोई सब्जेक्ट, नेटवर्किंग के लिए सर कोई सब्जेक्ट का वो फाउंडेशन नहीं है. जैसे मैंने कहा कि मेरी अंकल की जो बिटिया है, मेरी सिस्टर है, छोटी, अभी 12th में है, ठीक है, बट शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ. वो पढ़ती रहती है, देखती रहती है, मेरे से भी बात करती रहती है. सो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि वंस शी डज हर 12th और उसका खत्म हो जाए 12th, तो वो कुछ अपना जो भी उसको परस्यू करना है ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन साथ में ये करती रहे. देन शी विल डिसाइड फॉर हरसेल्फ कि उसको आगे अपना करियर नॉर्मल कॉमर्स में बनाना है या फिर साइबर सिक्योरिटी में आना है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी समथिंग इज ऑफ हर इंटरेस्ट. और अभी जो हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से, ठीक है, रिसेशन वगैरह की बातें चल रही है, बट एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी, जो मैं देखता हूँ चीजें जहां से, दीज आर फंडामेंटल. किसी भी कंपनी में, किसी भी टेक कंपनी में, आईटी बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड कंपनी में, नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी और क्लाउड, अगर वो क्लाउड बेस्ड कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो दीज आर बेसिक फाउंडेशनल जॉब्स. रिसेशन में अगर मार पाती, तो विशाल सर, मैं स्टार्ट करना, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज किया. देखो, कुछ जॉब होती हैं, हम इसको बोलते हैं रिसेशन फ्री जॉब्स. सर, रिसेशन फ्री जॉब्स क्यों बोलते हैं? जैसे आप समझो कि इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी लाइक सेक्टर, ठीक है, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिसेशन आएगा तो भी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी. आपको अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलाना है, रिसेशन आएगा तो भी आपको प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको प्लम्बिंग सिस्टम चलाना है, राइट. आपके रिसेशन आएगा तो भी मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की शॉप्स की जरूरत पड़ेगी, आपको बेसिकली फूड की जरूरत पड़ेगी, आपको बेसिकली बैंकिंग सर्विस की जरूरत पड़ेगी. तो वर्ल्ड में ना कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं रिसेशन फ्री जॉब्स. सो सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो, यू विल गेट द वेरी हाई पेड सैलरी, राइट. सॉफ्टवेयर, जैसे विशाल सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. सो सॉफ्टवेयर में आप जॉब कर सकते हो, नेटवर्किंग में आप कर सकते हो, लेकिन फर्क क्या है? दोनों ही हाई पेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है. ट्रस्ट में, people are getting 1 CR, 50 lakhs, 65 lakhs, 70 lakhs and more than that even. आप डिपेंड करता है किस लेवल पे हो, बट इट स्टार्ट ऑलमोस्ट 3 lakhs, जहां से आपको स्टार्ट होता है, और यहाँ से आप
ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे, या 2.5, डिपेंड करता है किस छोटी कंपनी से या किस बड़ी कंपनी से आप स्टार्ट करते हो, उस हिसाब से एवरेज 3 लाख का पैकेज एक नेटवर्क इंजीनियर का होता है जो फ्रेशर होता है। तो अगर आप इस जॉब में हो तो इस इज अ रिसेशन फ्री जॉब, कि आपको कभी डरने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी जॉब निकाल दिया जाएगा, कंपनी मुझे फायर कर देगी, नहीं। इतना ये रिलायबल जॉब है, इतना इसकी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि एवरी कंपनी नीड आईटी पीपल। क्योंकि बिना आईटी का कैसे उनका नेटवर्क चलेगा? अगर आईटी इंजीनियर को हटा देंगे तो नेटवर्क उनका बैठ गया, पूरा बिजनेस, अगर उनका पूरा बिजनेस बंद होता है तब दे कैन फायर द नेटवर्क। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सारा बिजनेस एक सही बंद हो जाएगा। तो अब सिर्फ एक चीज, सॉरी पंकज सर इंटरजेक्ट करने के लिए, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ डेली बेसिस पे। जैसे मैं आज ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, मैं बताना चाहूंगा, मेरे को सॉफ्टवेयर का तो नहीं पता, बट हाँ आप नेटवर्किंग में जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ, और आपकी CLPA है ईयरली, आफ्टर 6 मंथ चेंज करते डबल है आपकी, गारंटीड है, गारंटीड है। और अभी अभी सर ने बताया साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के कईयों के दिमाग में होगा, उसके लिए कोडिंग की नॉलेज जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आप एथिकल हैकिंग करोगे, पेन टेस्टर करोगे, जीरो कोडिंग नॉलेज है तो भी आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इजीली, कोई जरूरी नहीं है कोडिंग की नॉलेज है। राइट राइट, यस विशाल सर, थैंक यू सर, सौरभ सर, थैंक यू और सर। एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ बताइए सर। टेलीकॉम से नेटवर्किंग में जाने के लिए कुछ ज्यादा कुछ विशेष मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, या दोनों की टेक्नोलॉजी लगभग लगभग सेम है? क्योंकि अगर जैसे कोई टेलीकॉम से नेटवर्किंग में जाना चाहता है तो क्या उसको बिगिनिंग से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, या उसके लिए मूव करना आसान होगा? देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन भी मैं आपको लेना चाहता हूँ कि बेसिकली आपने फर्स्ट टाइम पूछा था कि किसी भी बंदे को या किसी भी जो एक हमारा स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल है, राइट, इफ ही वांट टू ग्रो इन अ नेटवर्किंग डोमेन, सो वो कौन सा सेक्टर का हो सकता है? क्या उसको टेक्निकल होना जरूरत है? पहली रिक्वायरमेंट, क्या वो टेक्निकल उसको होना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अभी भी बोलता हूँ कि नो, आंसर इज नो। कोई ऐसी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसी प्रीरिक्विजिट नहीं कि उसको टेक्निकल बैकग्राउंड से आना चाहिए, उसको बीटेक ही किया होना चाहिए, या उसको कोई डिप्लोमा किए होना चाहिए, या कोई अदर कोई टेक्निकल कोर्स को किया होना चाहिए, चाहे बीसीए हुआ या CIT कुछ। वगैरह, ऐसा हाँ BCA, हाँ, ऐसा ऐसा कोई ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर हार्ड एंड आपको इसको 10th में, 12th में, या अपने किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में अगर अपने टीचर के समझाई हुई चीजों को आप समझ पा रहे हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट का मतलब सिलेबस हो, तो आपके पास अगर समझने की क्षमता है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग। क्योंकि ये नेटवर्किंग ऐसा चीज है ना कि आपकी रियल लाइफ से जुड़ी होती है। आपके घर में नेटवर्किंग होता है, आपके मोबाइल आप यूज करते हो, राइट, जी आप हाँ, लैपटॉप बिल्कुल यूज बिल्कुल करते सर। हो, आप कंप्यूटर यूज करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो, यही सब तो नेटवर्किंग है। यही सब तो नेटवर्किंग है कि आपका फोन इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है, आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट चलता कैसे है। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि पीपल एक बार अगर पैशनेटेड है सीखने के लिए, अगर एक बार सीक्वेंस में चीजें सीखते जाएगा तो उसको रियल लाइफ में वो चीजें बिल्कुल कनेक्ट होती जाएगी। अच्छा यार, मैं तो ये इतने दिन से ये काम कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में लगा हुआ राउटर ये इंटरनेट है, और ये राउटर से कनेक्ट होता है और ऐसे डेटा चलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक बार अगर आपको किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, बस आपके अंदर समझने की थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल और थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा भी आपके अंदर है, यू कैन इजिली गेट। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है कि मेरा कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, बग टेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर आपको समझनी पड़ती है। नेटवर्किंग में आप एवरेज लेवल आप कैंडिडेट हो, और आई कैन से कि थोड़ा एवरेज से नीचे भी हो, स्टिल यू कैन सर्वाइव इन नेटवर्किंग फील्ड। और मैंने ऐसे लोगों को कितने जानता हूं जिनका नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल वो बीए किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, और आज उनका ऑलमोस्ट 30+ एलपीए उनका है। थोड़ा मैं सा ऐसे थोड़ा कितने सा लोग जानता हूँ। उसमें इसके ऐड लिए करता हूँ बेसिक पंकज। कोर्स क्या होगा जहां से हम स्टार्ट कर सकें? देखिए सर, अब बेसिक कोर्स की जब बात करते हैं किसी भी एक इंजीनियर्स के लिए, राइट, तो अगर हम बेसिक कोर्स की जब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग में उसको आना है, राइट, सो बहुत सारी वेंडर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे पास कुछ मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट में जिसको हम बोलते हैं सिस्को, ठीक है। अभी कितने लोगों को पता नहीं होगा, दूसरा हमारे पास जूनिपर है, ठीक है, हमारे पास पोलो ऑल्टो भी है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। इसी तरह के हमारे पास वर्सा भी है,
इस तरह से हमारे पास कुछ वेंडर हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास नोकिया का भी है, ठीक है, हुआवे का भी है। तो बहुत सारे वेंडर मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे वेंडर इसलिए अवेलेबल हैं कि ये सारे वेंडर्स मिलकर क्या करते हैं कि नेटवर्किंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको डिजाइन करते हैं और इस पे अपने डिवाइसेस को रन करते हैं, राइट, या अपने डिवाइसेस को इसके थ्रू ऑपरेट करवाते हैं। तो जो सबसे मेजर और जिनका मोनोपोली है मार्केट में, वो दो वेंडर हैं अभी आज के डेट में नेटवर्किंग के लिए, एक सिस्को है, एक जूनिपर है, ठीक है। लेकिन जूनिपर एंड सिस्को में भी अगर मैं बोलूं स्टेक की बात, तो सिस्को का स्टेक मोर देन 70% है और रेस्ट 30% जूनिपर का है। आप समझ सकते हैं, इस तरह से अगर दो का कंपेयर करें तो इस तरीके का कुछ आपको रेशियो निकल के आएगा। तो आप बाकी वेंडर को समझ सकते हैं कि कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब सिस्को जूनिपर का पूरा कंप्लीट मार्केट पे कैप्चर है। और ये ऐसे वेंडर्स हैं जो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आपके राउटर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी कई लोगों को पता नहीं होगा राउटर क्या होते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये स्विच को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये आपके फायरवॉल्स भी बनाते हैं। ये सारे तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपके नेटवर्किंग में यूज होते हैं, इसी के बारे में आपको पढ़ाई करना है। तो अगर कोई भी अगर फ्रेशर है, राइट, एंड ही वांट टू बिल्ड करियर इन द नेटवर्क किसी भी तरीके से, सो उसको पहला स्टेप जो सबसे पॉपुलर कोर्सेस है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया या किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो है सिस्को का सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज। वो सबसे प्रीमियम है, सबसे ज्यादा हॉट केक इन मार्केट, और इसको आप करते हो तो आपकी हाईएस्ट चांस है कि विल गेट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। बाकी सर्टिफिकेशन के आप जब कंपेयर करो उससे, आप कंपेयर करते हो तो उसका एंट्री लेवल जो सर्टिफिकेशन है, कोई भी अगर कोर्स करते हो तो उसका एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं CCNA। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आप लोग को। तो कोई भी सर्टिफिकेशन आप करते हो तो देखो, इन नेटवर्किंग में जाने के लिए आपको एंट्री लेवल पे आना पड़ेगा। पहला आपको एंट्री लेवल आप सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसको मैं एंट्री लेवल इसको ना बोलकर मैं एसोसिएट लेवल बोलता हूं, क्योंकि इसी का एडवांस है। तो थोड़ा इसको आप करते हो तो थोड़ा ज्यादा एडवांसमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है CCNA। मतलब आप फ्रेशर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा इस कोर्स को ना करो, ये बहुत ही बेसिक हो जाता है फिर, और ये करो कि जो आपका एसोसिएट लेवल का होता है। तो इसके बाद बेसिकली आपको क्या होगा कि आपका जो पहला बेबी स्टेप है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा CCNA से। जैसे ही CCNA आप कर लेते हो, एसोसिएट लेवल आप बन जाते हो, जिसको टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन जब आपके पास हो जाता है, तो आप इजीली किसी भी कंपनी में जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में, मैं अभी गूगल पे जॉब आपको दिखाऊंगा, रुको दिखाता हूँ सर आपको, देखो अभी तो आप ये फाइंड करेंगे कि थाउजेंड्स jobs are available in the market, right? So let me show you. CCNA based जॉब्स, आप जाके सर्च करो, बस देखो कितने जॉब्स मिलेंगे। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतने जॉब्स हैं। देखो आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको देखो यहाँ पे 403 जॉब्स नौकरी पे पड़ी हुई है अभी भी। देखो यहाँ पे 3239 जॉब फ्रेशर्स के लिए पड़ी हुई हैं। देखो नोएडा के अंदर पड़ी हुई हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए दिखा रहा है। तो आपको बेसिकली आप जाके देखोगे तो हर पोर्टल पे, ग्लासडोर पे, आपको साइन पे, आपको इतने जॉब्स मिलेंगे। बस आपको जाके अप्लाई करना है। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास सच में स्किल्ड है ना, आपने सच में कर रखा है, आपको मिनिमम 3 LPA का पैकेज कहीं नहीं गया है। बीइंग ए फ्रेशर की बात कर रहा हूँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एंट्री पॉइंट इज द सिस्को के साथ जाइए। CCNA सिलेबस जो है, CCNA जो पहला स्टेप है, CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जिसका फुल फॉर्म होता है, उसको आप करिए एंड देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। यस सर। और उसके बाद सर, क्या मैंने सुना है कि आजकल फायरवॉल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फायरवॉल के नेटवर्क मतलब इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सॉरी, अभी कुछ लोग का डिमांड आ रहा है कि इंग्लिश में बोलने के लिए। सो ओके ओके, ऑलराइट, सो लेट मी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सो मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ट्राई करूंगा। सो द फायरवॉल इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट फॉर द एनी नेटवर्किंग। सो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कुछ भी आप डिजाइन करते हो, राइट, कुछ भी आप बिल्ड करते हो, किसी भी तरह का आप मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी इन्फोर्स करना पड़ता है। सिक्योरिटी इन्फोर्स मतलब कि आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी, दैट मीन्स कि योर डिजाइन, योर इंटायर
infrastructure, entire architecture are, unsecure. Anyone can access them. Likewise the railway stations, right? Likewise the metro stations. आपने बहुत अच्छा मेट्रो बना दिया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना दिया, और बहुत अच्छा आपने रेलवे एयरपोर्ट बना दिया, but if you are not deploying the security, then anybody can go there and misuse the systems, misuse the, your whatever the things available in their places. तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसी तरीके से नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा जॉब्स का हमने देखा. सो लेट्स सी नेटवर्किंग डिवाइसेस. सो यू विल फाइंड दैट नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास बहुत टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास. जस्ट सो देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस में देखिए मोडम्स होते हैं, एनआईसी कार्ड होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, देयर इज अ हब, देयर इज अ स्विच, देयर इज अ राउटर, देयर इज अ वी, देयर इज अ गेटवे. सो ये सारे डिवाइसेस होते हैं, बट वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, एंड विदाउट प्रोटेक्टिंग देम दिस डिवाइसेस, अगर इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आज के जमाने में क्या होता है कि पीपल आर वेरी स्मार्ट. वो उनको हैकिंग आती है. वो क्या करेंगे, आपके डिवाइस को हैक कर लेंगे. दे आर गोइंग टू हैक योर डिवाइस. So once they hack your device, so what is going to happen? So अगर वो हैक कर लेते हैं तो फिर आपका सारा डेटा, सारा सिस्टम they can steal away from you. So उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायरवॉल आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा. तो फायरवॉल के बिना कोई कंपनी रन नहीं कर सकती है. नन ऑफ द कंपनी कैन रन विदाउट द फायरवॉल. आपको फायरवॉल या सिक्योरिटी का कोई ना कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा. सो एनी हाउ आपको बेसिकली फायरवॉल डिप्लॉय करना ही पड़ेगा. एंड फायरवॉल जब डिप्लॉय करोगे आप, तो आपके लिए उसको इंजीनियर रखना ही पड़ेगा. तो हर कंपनी के अंदर नेटवर्क इंजीनियर्स भी होते हैं और सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं. इसलिए हमेशा इसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं और हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है. आई होप आई एम एबल टू आंसर. तो सर So क्या in layman's term, firewall is basically like a boundary around a house. हाँ, हम बोल सकते हैं. जैसे Intruders जैसे को आने से रोकता है अंदर बस. हाँ, किसी भी अनऑथराइज मतलब एक्सेस. जैसे हमारा हाउस होता है, हाउस के अंदर हम डोर बिल्ड करते हैं, राइट? अब डोर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये मेक श्योर करते हैं कि रात में जब सो जाएं, एंड व्हेन आई एम स्लीपिंग नोबडी कैन एक्सेस एंड एंटर माय हाउस. सो वो प्रोटेक्ट करता है मेरे घर को, कि मेरा लॉक और मेरा डोर प्रोटेक्ट करता है कि नोबडी कैन डू एनी काइंड ऑफ थेफ्ट इन माय साइड ऑफ द हाउस. सिमिलर फायरवॉल क्या करता है कि फायरवॉल आपके जो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, आईटी एसेट्स, नेटवर्क डिवाइसेस, उनको प्रोटेक्ट करता है कि उन पे कोई अटैक ना करे, उनको कोई हैक ना करे, उनकी कोई जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर डेटाबेस है, उसको कोई अपने आप से हैक करके ना ले जाए. सो दिस इज व्हाट द फायरवॉल इज गोइंग टू डू. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या L1 पोजीशन पर जो लोग हैं, हमारे कलीग हैं बहुत सारे जो L1 पोजीशन पर हैं, क्या उनके लिए अभी फायरवॉल सीखना मैंडेटरी है या फिर L2 पर जाने के बाद उनको जरूरत पड़ेगी? मैं इस चीज का आंसर देना चाहूंगा. जरूरी नहीं है जो L1 पर है वो कभी L2 पे जाएंगे. L1 का मतलब है उनको सिर्फ CCNA की और बेसिक CCNP की नॉलेज है, ठीक है. अगर वो L2 या L3 पे मूव ऑन होना चाहते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है CCNP एंड एक फायरवॉल का होना. आप L1 पे इसलिए हो क्योंकि आपके पास सिर्फ CCNA जितनी नॉलेज है, और L1 वाले इंजीनियर आपने देखा होगा कि वो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं. गुड कैच, गुड. या ठीक है, आपको अगर L2 L3 पे जाना है. अच्छा, तो मैं सौरभ करना पड़ेगा. सौरभ जी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ गजेंद्र हमारे एक्स स्टूडेंट हैं. कमरजीत, आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हैं. संजय हैं हमारे, सुबह, तो आप लोग भी कर सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है, आप लोग कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ओपन डिस्कशन. आपको क्या लगता है गजेंद्र जी, सुन रहे हैं आप? आई थिंक ही इज इन म्यूट. ओके, सो सौरभ इज कम्प्लीटली राइट. सो मतलब कि जो मतलब इन्होंने बताया बिल्कुल परफेक्ट है. सो कभी भी मतलब किसी भी पोजीशन के लिए आप मतलब किसी पोजीशन पे हो, राइट, आपको ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा. बिना ज्ञान के तो आपके काम चलेगी नहीं. बट प्रॉब्लम क्या है कि जितनी जल्दी समय के साथ साथ ज्ञान अगर ले लेते हो तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है. कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होता है. जैसे मान के चलो किसी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ उनको सिर्फ और सिर्फ राउटिंग एंड स्विचिंग आती है, राइट? उनको राउटिंग एंड स्विचिंग आती है. अब उनके साथ दिक्कत ये होती है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, वो राउटिंग स्विचिंग आती है. बट अब यहाँ पे मान के चलो कि इनकी पैकेज मान लेता हूँ कि 10 LPA का है, ठीक है.
10 LPA का है या 8 LPA का है या 9 LPA का या 12 LPA का, कुछ भी हो सकता है, अराउंड यही चलता है, 5 to 10 या 12 ऐसे ही रहता है 5 ईयर एक्सपीरियंस का जो हमारा पैकेज रहता है। कई कई लोग एक्सेप्शन होते हैं तो उनका 18-20 भी रहता है, वो डिपेंड करता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो कोई बंदा है जिसको सिर्फ राउटिंग स्विचिंग आती है और उसका पैकेज अराउंड एवरेज है 8 to 10 lakhs का उसका पैकेज है। बट अगर आपका कोई कलीग है, उसका भी आपके ही इतना एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, बट उसको आरएनएस के अलावा, राइट, आरएनएस के अलावा और वो क्या जानता है, आरएनएस के अलावा वो एक फायरवॉल जानता है, कोई भी, जैसे पोलो अल्टो फायरवॉल हो गया, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया, या वो एक F5 जानता है, राइट, कोई भी, जैसे F5 के 2 मॉड्यूल होते हैं, LTM GTM, कुछ भी वो जानता है, या वो बंदा हम साथ में SD WAN जानता है, राइट, या वो बंदा जी स्केलर जानता है, तो वो क्या होता है कि उसकी वेटेज ना इनसे कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट इज डिमांडिंग फॉर द मल्टी स्किल्ड पीपल, नॉट अ सिंगल स्किल्ड पीपल। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, उसको ये लगता है कि मैं 2 इंजीनियर की जगह या 3 इंजीनियर की जगह एक ही इंजीनियर हायर करूं, थोड़ा उसको पैसे ज्यादा दे दूं, बट ही इज गोइंग टू सर्व माई ऑल प्रॉब्लम, राइट, ही इज गोइंग टू सोल्व माई ऑल प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट प्रॉब्लम। तो इसलिए तो ये 5 साल का बंदा है, अगर उतना इतना कुछ उसको आता है, या इसमें से राउटिंग स्विचिंग के साथ 2 चीजें भी आती है, तो उसका एवरेज पैकेज मैं बोल सकता हूँ अप टू 20 लाख तो मिल जाएगा, बट एवरेज उसका 15 लाख तक बड़े आराम से पैकेज मिल जाएगा, प्लस 20 प्लस भी उसको मिल सकता है। सर So what- सर मेरा एक बात बताना है आपको, आपने पर थोड़ा SD-WAN के बारे में बताओ उनको कि SD-WAN के जो अपने फीचर थे, अपने जो हम पढ़ रहे थे कि आप बोलते थे कि एक जगह रख दिया दूसरी जगह रख दिया, वो इनको डीप में बताओ। SD-WAN तभी इनको पता चलेगा, वैसे तो इनको सिर्फ ये पता चलेगा ये राउटिंग स्विचिंग की तरह। नहीं, SD WAN जो हमारा है राउटिंग स्विचिंग से, मतलब राउटिंग स्विचिंग का मतलब बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है, एडवांस बट ये हाँ, लेकिन ये SD WAN जो कॉन्सेप्ट हमारा है, SD WAN जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंप्लीटली वेरी एडवांस थिंग्स। इसके अंदर आपके पास क्या आता है, इसके नॉर्मल लेगेसी हमारी राउटिंग स्विचिंग होती थी, इससे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो बहुत अलग है। इसके अंदर आपको पॉलिसी समझना पड़ता है, जो पॉलिसी इसके अंदर आपको GUI से कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए, नॉट CLI, जैसे आप लेगेसी में करते थे CLI से, कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे आपको ग्राफिकल लाइन इंटरफेस से करना पड़ेगा। इसमें आपको राउटिंग नॉट ओनली बेस्ड ऑन द IP करना है, राइट, IPv4 के बेस पे राउटिंग नहीं करना आपको, यहाँ पे राउटिंग आपको एप्लीकेशन के बेस पे भी करना है। तो आप सोचो कि फेसबुक की एप्लीकेशन के बेस पे हमको राउटिंग करना है, इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल इन द SD-WAN। आपको रियल टाइम अपने आप राउटर कैसे ऑटो फेल ओवर कर देगा, ये सब भी आपको समझना है, और उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि मेरा राउटर बिना मुझे पूछे किस तरीके से मेरा ऑटो फेल ओवर कर दे। तो ये सारी चीजें SD-WAN की आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, फीचर्स हैं, जैसे क्लाउड आज की डेट में आ रहा है, राइट, तो कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, IaaS को, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज SaaS को, इनको कैसे आप SD-WAN से इंटीग्रेट करते हो, कैसे आपका GCP क्लाउड, राइट, कैसे आपका Azure क्लाउड और आपका AWS क्लाउड, ये दोनों कैसे आपके इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं, तो ये सारी भी आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो SD-WAN इज लाइक, आई कैन से कि वेरी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कि इसके अगर राउटिंग स्विचिंग इंजीनियर हो और आपको अगर आज के डेट में SD-WAN अगर नहीं आता है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर अपनी जॉब को सर्वाइव करना है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर, तो आज ही इसको अपडेट कर लो, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि द फोरकास्टिंग इज कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर में जो लेगेसी राउटिंग स्विचिंग है, सारे कस्टमर उसको हटाकर SD-WAN पे मूव हो जाएंगे। यस सौरभ जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? जिसको भी फायरवॉल में इंटरेस्ट नहीं है, एक मास्टर कॉम्बो अपने पास और है जिसमें हम SD-WAN कराते हैं, ठीक है। जिसको लगता है ना मैं राउटिंग स्विचिंग में जाना चाहता हूँ, मैं आज बता देता हूँ, मैं प्योरली राउटिंग स्विचिंग में हूँ, बट मेरे पास SD-WAN की नॉलेज है, ठीक है। मेरे को सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे पास SD-WAN है। आप आफ्टर SD-WAN 16+ का पैकेज ले सकते हैं। डिपेंड करता है, आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने SD-WAN कर लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ 1 ईयर का, तो आपको 16 लाख कोई नहीं देगा यार। No, so to summarize what Saurabh is saying, these are basically right from CCNA to any course that we are offering, or that is in terms of network security or cloud.
is to upgrade your present status to get you to the next level. So basically layman's term में हम ये कहें कि भैया BA कर लिया है तो अब MA कर लेना चाहिए, अगर पैकेज में हाइक, एक्सपीरियंस में हाइक या फिर नॉलेज में हाइक चाहिए, तो जो कि हर किसी को चाहिए फॉर अ करियर प्रोग्रेशन विद टाइम। किसी ने आप करते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोर्स करते हैं तो SDVN इज द नेक्स्ट लेवल, डिपेंडिंग अपॉन अगेन। अब BA का आदमी ऐसा कोई लिखा हुआ तो सेट रूल नहीं है कि जो है मतलब नौकरी के लिए ये सेट रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भैया BA का आदमी MCOM नहीं कर सकता, लेकिन किसी का कॉमर्स में इंटरेस्ट जाके तो वो MCOम कर सकता है आगे चल के बैचलर्स के बाद। तो उसी तरह है आपका कि भैया आपको राउटिंग स्विचिंग में जाना है, आपको सिक्योरिटी में जाना है या क्लाउड में जाना है, आपका इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आप कोर्सेज चूज करते हैं। बट प्रोग्रेशन तो सबको कोर्स में चाहिए ना, अपने करियर कोर्स में या फिर नॉलेज के कोर्स में, व्हाटएवर विद टाइम। डेफिनेटली उसी हिसाब से आपका रिन्यूमरेशन भी अप डाउन होता रहता है। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, लोग जनरली जो चीजें जो है टेक्निकल तो पंकज सर बताएंगे, बट नॉर्मल मैं जो है लाइफस्टाइल के हिसाब से बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर कोर्सेज की बात करते हैं और सबके दिमाग में एक इंप्रेशन बनाना रहता है कि भैया सॉफ्टवेयर वाले लोग या फिर कंप्यूटर जिन्होंने भी जो है डिग्री कर रखी है उनका पैकेज बड़ा हाई होता है, मतलब बिल्कुल हाई होता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उनका कोर्स करने में भी तो उतने पैसे लगे होते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 15 लाख का कोई कोर्स कर रहे हो तो यू वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि 6-8 लाख की नौकरी मिले। बट अगर आप बेसलाइन मेंटेन करके चलोगे, एवरेज देख के चलोगे, तो नॉर्मल एक नेटवर्क सिक्योरिटी या क्लाउड इंजीनियर में की पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है, वेदर व्हाटएवर काइंड ऑफ कोर्स दे हैव डन इन द Sir, kindly explain about the G-scaler. whatever course in terms of scope of G-scaler. लग रहा है। अगर आप दोनों का एवरेज मीडियन निकालोगे तो द पे आउट इज मोर और लेस ऑन द सेम लेवल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। यस या सर मैं एक विशाल सर आपके मैं बात से एग्री तो कर रहा हूँ, बट सॉफ्टवेयर वाले टेक्निकल से ज्यादा है ये मैं डिसएग्री करता हूँ कि नेटवर्क में जितने पैसे हैं मैं सॉफ्टवेयर में नहीं देखता हूँ। सॉफ्टवेयर की एक बार में जंप अच्छी होती है, बट नेटवर्क में उसके वो एक स्टेज आके वो स्टॉप हो जाते हैं। आप जो कह रहे हो पैकेज उनका 50 लाख तक पहुंच गया, बट वो 50 लाख के बाद है ना अप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, राइट आई एग्री, बिकॉज नेटवर्किंग के करियर ऑप्शंस में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जैसा पंकज ने बताया पहले, इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज इन व्हाट यू आर डूइंग डे टू डे। आई एग्री, इसमें डे टू डे स्टडी करनी पड़ती है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है टेक्निकल के अकॉर्डिंग। बट सॉफ्टवेयर वाले अपग्रेड कब करते हैं? जब उनको उनकी उम्र हो लेती है तब उनका अपग्रेडेशन स्टार्ट होता है कि हाँ, जब पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाती है। उनकी उम्र होने का मतलब है कि 20 साल आपके इंडस्ट्री में कट गए, अब पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जा रही है, तो आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्सोलीट हो जाओगे। हाँ, और नेटवर्किंग में ये डेली बेसिस पे चलता है, बिकॉज चीजें हर रोज बदल रही होती है ऑन द बेसिक लेवल। तो बेसिकली क्या होता है, जो फ्लाइट से बना जाता है दिल्ली टू बॉम्बे, उसका स्टॉप ओवर बहुत रिमोटली चेंज होता है। बट ट्रेन में आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप स्टॉप ओवर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जस्ट समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। राइट। कमरजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ आई थिंक आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर चलिए, हाँ बताइए। सर लास्ट 5 to 6 years में विप्रो में हूँ सर, एज ए नेटवर्क एडमिन काम कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मेरे पास जो मतलब नौकरी से जो कॉल आ रहा है उसमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा है कि नेटवर्क नॉट ओनली फॉर नेटवर्क या राउटिंग स्विचिंग जानने से भी मतलब वो है, ठीक है, लेकिन इन एडिशन टू दैट सिक्योरिटी इज मैंडेटरी। सिक्योरिटी मैनेजर क्योंकि अभी रिसेंटली 2021 में जस्ट मेरे को L3 में दिया गया है, तो विप्रो में ही था सर, वेराइटीज प्रोजेक्ट में वेरियस लोकेशन में मैं पोस्टेड था। तो दैट इज व्हाई मेरे को जस्ट 21 दिसंबर में मेरे को L3 में दिया गया। तो अल्टीमेटली उसमें मैंने दिखाई दिया है कि बाहर जो कंपनीज है, इंफोसिस हो, TCS हो, जो भी है और भी कंपनीज जो है, वो लोग जब भी वो करते हैं कि उसके साथ इन राउटिंग स्विचिंग तो सबको आता है आज के डेट में, ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब वो लोग है कि इवन HR भी कॉल करता है, राउटिंग स्विचिंग इज अ कॉमन थिंग, इन एडिशन टू दैट तुमको क्या आता है, व्हाट आपको एक्स्ट्रा क्या आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस वालों के साथ हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। इवन वो मतलब कल मेरा मतलब बोला है कि मुंबई लोकेशंस के लिए कुछ TCS का कुछ इंटरव्यू वगैरह है, तो मेरे को बोला है कि इसीलिए मैं मतलब पालो अल्टो कर रहा था। आपको तो पता है मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो सिक्योरिटी के लिए मेरे को मतलब नॉलेज चाहिए, मैंडेटरी है आज के डेट में। सिक्योरिटी के बिना नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी होगा तो बंदा हम लोग हायर करेंगे, अदरवाइज देखते हैं नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी विशाल सर हमारे सिक्योरिटी से है,
मैं और सर हम बात कर रहे हैं, जूम पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। विशाल सर को सीएच आता है, पाइथन आता है, बग बाउंटिंग आती है, ठीक है। वो हमारी बातें सुन सकते हैं इजीली, उनको पता है कि आज ये है ना बातें करने वाले हैं, तो उनकी बातें क्रैक करनी है बस। क्यों विशाल सर, सही कह रहा हूँ मैं? एब्सोल्युटली। संजय पाल भी कुछ कहना चाह रहे। संजय अपनी चैट बड़ा अच्छा लिखा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाइक हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है अपग्रेडिंग नॉलेज पे। सो एब्सोल्युटली राइट संजय, राइट। तो संजय आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, कहाँ पे और कैसा, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी पता चले, क्योंकि यू आर कनेक्टेड सिंस लॉन्ग विद अस, अगर आप बताना चाहें तो। Yes, so means like we are all already discussing. So I am also from the routing switching background. But if you ask me the total experience, so I have the 15-year experience. Wow, okay. great. But in the इंस्पायरिंग कई लोग हमारे साथ ऐसे हैं कि जो मतलब कि मतलब 3 year 4 year 5 years, so 15 years like it's very good. तो आपकी बात बहुत वैल्यू करती है हमारे लिए। राइट। तो अभी मेरा क्या हिसाब हो रखा था कि अभी तक मतलब मेरा वाला हिसाब हो रखा था कि नोकिया वाला, कि हमने अपने आप को अपग्रेड किया नहीं और आप मार्केट से धीरे धीरे लैप्स हो जाएंगे। तो हम 9 साल तक एक ही डेस्कटॉप उस वाले प्रोफाइल में रहे। फिर हमने देखा यार नहीं, हमारे साथ के तो सब आगे निकल चुके हैं। मतलब मेरे जो फ्रेंड है वो 32-38 लाख के पैकेज पे हैं आज के समय में, और मैं उनका 33% हूँ अभी। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाओगे। इवन एक दो फ्रेंड वो हैं जो उन्होंने मेरे से बाद में करियर अपना स्टार्ट किया, बट दे हैव इन्वेस्टेड लाइक मनी एंड टाइम। उन्होंने अपने आप को मतलब सर्टिफिकेशन किया, ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने सेल्फ में, और उन्होंने टाइम दिया, और वो अपने आप को उन्होंने ग्रो किया, और मार्केट की जो एक्सेप्टेशन है उसके हिसाब से फुलफिल किया। भी आज के समय में क्या है कि मतलब वो एक शायद अपना लिंक्डइन पे भी है ना, एक सिंगल ट्री पे मल्टीपल जेडी लगे हुए हैं। सही बात है। आप लोगों ने बोला अभी कल परसों मेरा एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो उन्होंने बोला, जैसे अभी डिस्कस चल रहा था, उन्होंने बोला राउटिंग स्विचिंग हाँ जी आता है, और क्या आता है? मैंने बोला जी एलटीएम आता है, नेट स्केलर वगैरह आता है। बोले इसके अलावा क्या आता है? मैंने बोला जी फायरवॉल आता है, पालो अल्टो। बोले सिंगल फायरवॉल आता है? मैंने बोला हाँ। बोले अच्छा। बोले नहीं फायरवॉल भी चलेगा, लेकिन हमें वो बंदा चाहिए जो एक्सपर्ट हो फायरवॉल। मैंने बोला मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ, बट आई एम नॉट द एक्सपर्ट। ठीक है, तो दे आर लुकिंग द L3 लेवल का। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे अभी हम राउटिंग स्विचिंग का कोई बंदा काम कर रहा है 1-2 साल का एक्सपीरियंस, तो उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि भैया ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है कि मतलब पहले डिग्री कंप्लीट होगा फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा तब मैं दूसरा कोर्स मतलब एमए में एडमिशन लूंगा या कुछ लूंगा, नहीं। आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप। अगर आप राउटिंग स्विचिंग कर रहे हो, आप उस पर डेली काम कर रहे हो, तो आप अपना फायरवॉल पढ़ो, सिक्योरिटी फायरवॉल आपको हर कंपनी में मिलेगी मोस्टली। आज के टाइम मतलब रिलेटेड फील्ड में जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट है या जो आपका इंक्लिनेशन है जिसके तरफ, हाँ उसमें जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को अपग्रेड टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही चीज पर अपना स्टक हो गए कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब इस पर चलता रहेगा। नहीं, अभी मार्केट में जैसे अभी लेगेसी नेटवर्क चल रहा है, धीरे धीरे एसडीएन पे आ रहा है, धीरे धीरे आगे जाके लेगेसी नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अभी हर कोई कंपनी एसडीएन में जा रही है। सही बात है, बिल्कुल सही संजय बोल रहे हैं। आज के टाइम में लेने का तरीका मैं बता देता हूँ, जंप कैसे लेना है। ठीक है, कोई राउटिंग स्विचिंग में मैं फ्रेशर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर कोई ऐसा करे जिनके पास 1 ईयर का या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो भी ऐसा ना करे। जंप जिसको लेनी है, जिनके पास 3+ ईयर एक्सपीरियंस है, वो अपना जब आप जॉब चेंज कर रहे हो या आपको रिजाइन दे दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप को 2 महीने दे दो। ठीक है, उसमें आपको अपग्रेड करना है, और उसके बाद है ना अपनी जो करंट पैकेज है उससे डबल मांगना स्टार्ट कर दो। एक वक्त ऐसा आएगा डबल पैकेज वाला डबल पैकेज वाला वन एग्जांपल ऑफ दैट। आई थिंक अरमान आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले एंटिटी में था। 4.5 वाज द पैकेज 6 months before. He gave the resign. He prepared for 2 months, and now he is getting 18 LPA in Vodafone. And he got a good 300% hike. उसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया। पहले स्टार्ट में उसने इंटरव्यूज दिया, ठीक है, इट वाज नॉट गोइंग वेल। उसने बोला आई विल प्रिपेयर अगेन। ही गेव टाइम टू हिमसेल्फ, देन he again started giving the interviews and he started picking the counter offers, and he currently is getting 18 LPN and he is only just 5 years of experience. तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला ना उसने रिजाइन कर दिया, तो मेरा सजेशन ये है, मतलब चॉइस आपकी है, बट या आप अपने जो करंट
पोजीशन है उसको कंटिन्यू रखो और साइड में 2-3 घंटे अपने लिए निकालो। इसमें क्या इशू था सर पता है, देखो नाउ डेज कंपनीज हैव 3 months ऑफ नोटिस पीरियड, 90 days। राइट। वहां पे HR 90 days सुन के ही बोलता वो वी डोंट वांट, वी वांट इमीडिएट ज्वाइनिंग और 1 month ज्वाइनिंग। यहाँ पे रिस्क लिया उसने, he started giving interview in his last of 30 days। अरमान, रिस्क लिया भाई, ठीक है। अगर आपको हाइक चाहिए तो लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। Saurabh, let's not Saurabh, let me moderate the discussion a little। हम एक particular example या फिर generics की बात करें, let's not generalize it। आपका friend अरमान is an exceptional story, ठीक है। 300% hike किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन या एंड पंकज आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में 300% हाइक आर रेयर स्टोरीज, वो होता है। अभी विशाल से मैं बताता हूँ, अरमान की जो बातें हैं ना मतलब बहुत मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज यही तो एक स्पाइक है, यही पिक है, यही अट्रैक्शन है फॉर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी डोमेन्स का। पीपल आर गेटिंग ऑफर काउंटर ऑफर डे बाय डे, क्योंकि अगर आपने सपोज करो, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता क्या है, मैं बताता हूँ होता क्या है, जस्ट थोड़ा सॉरी फॉर दैट, मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान के चलो कि मेरा 5 लाख का पैकेज है, राइट। सो मेरा 100% हाइक कितना होगा, मैं 5 लाख का 10 लाख का गेन कर लूंगा। तो चलो मान के चलो किसी मैंने बड़ा एक्सेप्शनल अपने तैयारी कर लिया और किसी कंपनी ने मुझे 10 लाख का ऑफर कर दिया। अब मेरे पास 3 months का नोटिस पीरियड है। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में अपने आप को बेचना स्टार्ट करूंगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, राइट। अब क्या करता हूँ कि विप्रो ने मुझे 10 लाख का ऑफर किया, 10 लाख का ऑफर किया, मेरे पास दूसरी कंपनी आ गई TCS। मैं बोला कि मेरे पास तो ऑफर है 10 लाख का, मेरे को 12.5 दोगे तो मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। नाउ अ डे दे ऑफर विदाउट एनी क्वेश्चन। जैसे ही मेरे पास 12.5 का ऑफर आया, मैं बोला कि मेरे पास अभी मेरे पास करूंगा नेक्स्ट कंपनी। हाँ, तो इस तरीके से ये जो है ना ट्रेंड, जो अरमान का जो एग्जांपल था, ट्रेंड इज वेरी पॉपुलर नाउ इन द मार्केट एंड द पीपल्स आर वेरी जो हायरिंग करता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो ऑफर निकालते हैं और पीपल आर टेकिंग 200% हाइक, 300% हाइक, इवन मोर देन दैट इवन। तो ये नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी का जो थोड़ा मार्केट है ना, वही डिमांड दिखा रहा है कि मार्केट में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड कितनी है। बट वही बट लेट्स नॉट सेट इट एज एन एक्सपेक्टेशन कि आपको 300% हाइक मिलेगा। थोड़ा रियलिस्टिक रहने पे बात करते हैं। जनरलाइज नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपको करंट सैलरी कितनी है। मतलब नॉर्मल जो कॉर्पोरेट का हिसाब किताब होता है 30 to 40% हाइक चलता है व्हेन यू स्विच, ठीक है, इन जनरल। वो नेटवर्किंग में मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि दैट गोज टू, मान लीजिए आप जो है एक सर्टिफिकेशन करके आ रहे हैं, आपका बेसिक एक प्लेटफॉर्म है, आप अगर एक सर्टिफिकेशन में टाइम एफर्ट अपना इन्वेस्ट करके आप उसमें प्रो बन जाते हैं, देन यू स्विच, तो 80 to 100% हाइक तो बनता है। बट लेट्स नॉट 100% वी गेट सर। हाँ 100% ही कह रहा हूँ, 80 to 100%। सर देखो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपका एक्सपर्टीज कितना है। अब मैं ये कहूँ कि मेरा 3 लाख का पैकेज था, मैंने 1 साल काम किया है और मैंने एक कोई सर्टिफिकेशन कर लिया और मेरे को 6 लाख चाहिए, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। नो, ठीक है। हाँ, उसके साथ और भी चीजें हैं, जैसे मेरा एक्सपोजर लेवल क्या है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। एक मेजर चीज मैं जो इस फील्ड में देख रहा हूँ, जो लोगों को हिंड्रेंस क्रिएट करती है, जो मैं पूरे इंजीनियरिंग डोमेन में आज से नहीं, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इट सिंस 2005, वो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना, दैट इज, एंड वो हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले को। जो पंकज ने भी टर्म यूज किया कि हमें हर अगले जो ना हायरिंग एजेंसी को या हायरिंग HR को, कंपनी के, अपने आप को बेचना पड़ता है, ठीक है। वो हम कब कर सकते हैं इफेक्टिवली? हम जब कम्युनिकेशन 5 लाख का ऑफर है और मेरे को 10 पे मटेरियलाइज करना है नेक्स्ट से, तो हम कब कर सकते हैं? जब हम कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से। और सिर्फ वो कम्युनिकेशन जो एक भाषा के थ्रू होता है, जो अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में अंग्रेजी ही है कॉर्पोरेट में, सिर्फ उसके वजह से मेरा लॉस हो जा रहा है कि मुझे जहां मेरा पोटेंशियल था 10 नेगोशिएट करने को, और मैं 7-8 पे चुपचाप बैठ जा रहा हूँ मन महसूस के, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन नहीं है। तो वो भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, 80 to 100% का हाइक is a realistic figure. रियलिस्टिक वो एक्सेप्शन होता है कई बार, 300% to 500% हो सकता है। हाँ, वो एक्सेप्शन होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे जा रहे हो। स्टोरीज होती है। अच्छा, हमारे साथ एक पैनलिस्ट हैं, रंजीत जी, ही इज फ्रॉम पटना IIT, राइट। सो रंजीत जी, इट्स अप टू यू। आप अपना एक्सपीरियंस करके, ये भी काफी एक्सपीरियंस है, सो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े पड़े हुए हैं, सो वी रियली लाइक टू टॉक टू हिम। सो रंजीत जी, आप बताइए अपने बारे में। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग, गुड सर इवनिंग। सर मुझे ये बेसिकली सबसे जानना है बेसिकली, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट में आया हूँ, बट अच्छा। मेरा सर ये जानना है, मैं CCNA, CCNP, CCI एंड CCSA और सिस्को एसे में काम करता हूँ यहाँ पे पूरे डेटा सेंटर में ही देख रहा हूँ, IIT पटना का। सर पैकेज अप्रोक्स 6 लाख का लगभग है मेरा यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर में मुझे अभी 12 लाख 15 लाख का मिल जा रहा है। मैं 2-3 कंपनी में ट्राई किया तो मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, मतलब इंटरव्यू कर लिया था। तो सर मुझे ये प्राइवेट में मुझे जाना चाहिए? देखो रंजीत जी, मैं एक बात बताऊं आपको। विशाल सर आप बताइए अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो। मतलब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। डिपेंड ये करता है कि आपको लाइफ में आगे परस्यू क्या करना है। आप पटना से, क्योंकि मैं भी हूँ, जो है पंकज जी का भी ताल्लुक आसपास से है, अभिषेक सर भी आस-पास से हम, और मैं हार्डकोर पटना का रहा हूँ, ठीक है। तो घर है मेरा, मेरा अपब्रिंगिंग वहीं हुआ है, सेंट पॉल स्कूल जो है इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जो है वहीं से पढ़ा हूँ। तो प्रॉब्लम यह है सर कि आपके लाइफ के एम्बिशंस क्या है, क्योंकि जो है ना, डिपेंड करता है कि आपका आगे का गोल क्या है। कोई भी किसी से भी पूछोगे ना तो वो कहेगा पागल है क्या, ऐसा सोच भी रहा सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट करने जाएगा। अच्छा। बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अमरीश पुरी, अमरीश पुरी का नाम सबने सुना होगा। हाँ, तो अमरीश पुरी पुणे में हुआ करते थे और इंस्पेक्टर थे, सरकारी मुलाजिम इंस्पेक्टर थे। वो हवलदार कांस्टेबल बॉम्बे गए इसलिए कि भैया मुझे एक्टर बनना है। और आज अमरीश पुरी ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं कमाया और ऐसा भी नहीं कि नाम नहीं कमाया। दुनिया में अगर टॉप विलेंस की लिस्ट खोलोगे तो दूसरा नाम आता है अमरीश पुरी का। तो वही, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप उसमें एडवाइस ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा रंजीत जी के लिए स्पेशली। देखो रंजीत जी, अभी आप जिस लेवल पे हैं, ठीक है, और जो आपका नॉलेज होल्ड करते हैं, ठीक है, देखो सरकारी जॉब आज के डेट में ना, गवर्नमेंट जॉब मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जस्ट काइंड ऑफ द लग्जरी है कि ठीक है, आपको वो बिल्कुल पीस माइंड, आप पीसफुली काम कर रहे हो, कोई आपको प्रेशर नहीं है। लेकिन ये पैकेज ना एक समय के बाद आपको बहुत छोटा लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सरकारी रहने से अगर आपको मतलब सिर्फ यही करना है कि मुझे ऐसी लाइफ रखनी है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो ठीक है। बहुत लोग ऐसे सरकारी जॉब में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ ना बिल्कुल लिमिटेड होती है, एम्बिशियस नहीं होता, फिर वो ना आगे नहीं सोचते हैं। उनको लगता है चलो ठीक है, मेरी जिंदगी भी यहीं पे है, यहीं पे खत्म हो गई, अब इतने में मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हो तो हमेशा आप कॉम्पिटिटिव रहते हो, हमेशा आपको ना भूख रहती है कि आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू अर्न। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा लग्जरी है एज कम्पेयर टू द लाइक पब्लिक सेक्टर्स जो भी हमारे पास है। लग्जरी इन टर्म की आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगी आपको, और साथ में इतना कॉम्पिटिटिव पैकेज रखा हुआ है कि अगर किसी का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि जो अभी करंट CTC आपका है, आई कैन से कि अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मेरे को अगर पैसा चाहिए तो मैं उसको स्विच करता। आई डोंट केयर कि मेरा प्राइवेट है कि पब्लिक है। मुझे दिखता है कि 6 से 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 18 से 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन लेट मी रिमाइंड हियर टू एवरीवन इज कि वो पंकज का पर्सनल डिसीजन है, उनके अपने थॉट प्रोसेस और वैल्यूज के ऊपर है। वो हाँ, मैं ऐसा सोचता, नहीं। हाँ, ये सबके लिए मैं अपना बस बता रहा हूँ, आपको रिलेट कर सकती। मेरा एम्बिशन ये है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट से क्या लेना देना है। गवर्नमेंट मेरे को 6 लाख दे रही है, मतलब या 10 लाख दे रही है तो महीने के, मुझे अगर वो 80,000 दे रही है, प्राइवेट वाला मुझे 1,60,000 दे रहा है, सो आई कैन नॉट गो। क्योंकि प्राइवेट भी ऐसे कल्चर है कि आपको कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं कोई आपको एक्सटॉर्शन करेगा, कोई जबरदस्ती आपसे काम करवाएगा। बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको इनिशियली नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ जाए, थोड़ा सा ऑड आवर्स में काम करना पड़ जाए। डिसिप्लिन वो होता है ना सरकारी में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप मतलब नो ऑफेंस, बट आप खुद से बताइएगा सर रंजीत जी कि बस ऑफिस आना जाना लगा रहता है, कौन सा टर्मिनल है, नया टेक्नोलॉजी क्या है,
बहुत ज्यादा इन सब चीजों से मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब की डिसएडवांटेज बता देता हूँ। आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे अगर गवर्नमेंट जॉब में गए तो, कभी नहीं ऐसा लर्न नहीं कर है पाओगे। सर। सौरभ, लेट्स नॉट बी नेगेटिव टुवर्ड्स इट, क्योंकि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे गवर्नमेंट जॉब के ही हैं। अगर इतने ही बेवकूफ होते तो देश कैसे चलता है? ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में आप कुछ जान नहीं पाओगे या सीख नहीं पाओगे, उसका प्रोसेस अलग अलग होता है सर। हाँ, एक बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है काम करने का, हम जो काम कर रहे हैं, जो मंत्री वगैरह है वो +2 पास है, ठीक है। इंजीनियर जो है वो बीटेक है। ऐसा क्यों? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में आपकी ना ग्रो बहुत स्लो होगी, प्राइवेट सेक्टर में ग्रो बूस्ट एकदम से होती है। नहीं, लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। हमें बात वही नहीं वही करना है कि हमारा एथिकल जो डिस्कशंस में नहीं जाते हैं हम। सर, वो सब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। देखो, इसमें भी मैं वही बोलूंगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आपको रिस्क लेना है तो प्राइवेट में आ जाओ और पैसा मिलेगा, और स्मूथ जीना है तो गवर्नमेंट में चलते रहो, जैसा चल रहा है चलना, ठीक है। मतलब बस अपने आप को आप बेच नहीं पाओगे उस हिसाब से, जैसे पंकज जी ने बताया। मतलब आप पाल साहब का एक्सपीरियंस काम में आ गया, जवाब देने में देखो सारे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गए। बस, तो आप अपने आप को कैसे सेल करते हो? जैसे आजकल एक जोक है ना, वो मतलब प्राइवेट वाला और गवर्नमेंट जॉब वाला, मतलब कि हम आपको 25,000 रुपए देंगे और आपको सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक काम करना है, सैटरडे हाफ देंगे, संडे फुल देंगे। तो वो सरकारी वाला बोलता है नहीं, हम तो आपको 50,000 देंगे, आप आओ मत ऑफिस, पूजन सब घर से करो, ठीक है। तो उसमें है, लेकिन मतलब इसका ये है कि देखो, अगर आपको रिस्क है, मतलब आपको प्राइवेट में आना है तो रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। आपके पास पैसा बहुत है, रिस्क है, लेकिन अगर आप स्मूथ जिंदगी चाहते हो, बिल्कुल हाँ जी मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में, आ रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में छुट्टी, आप उसके साथ भी कर सकते हो। सर मैं एक बात बता सर प्रॉब्लम ये होता है सर को आज ना, 15 साल का इसमें एक्सपीरियंस गवर्नमेंट हो में चुका है। पंकज सर को आज 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। पंकज सर आप एक बात अपने ऑनेस्टली बताओ। सौरभ डोंट माइंड, एक ना श्याम हमारे हैं, उनका कुछ क्वेरी है, ही वांट टू आस्क समथिंग। मैं एक बार श्याम का क्वेश्चन लेता, फिर आप कंटिन्यू करना, ठीक है, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे हैं। श्याम आप। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम ना एज ए नेटवर्किंग, कोर नेटवर्किंग पे काम करते हैं, ओके। और पालो अल्टो सिक्योरिटी तो मतलब एक प्रकार से कॉम्बो हो चुका है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी का। तो मेरे 2-3 सर इंटरव्यू हुए हैं, बट उनका सर क्वेश्चन ये था कि आपको ना, मैं तो पूरा सर सिक्योरिटी डिवाइसेस पे काम करता हूँ, मेरे को उनका नेटवर्किंग डिवाइसेस पे उनका मेरे को सर नॉलेज है कि कैसे काम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि उस पे मैं काम कर रहा हूँ। बट सर ना इंटरव्यू सर को यही क्वेश्चन होता है कि अगर मैं पालो अल्टो शो कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है पालो अल्टो पे। तो वो चीज सर चीजें हो जाती हैं सर, मतलब देखो एक मैं आप लोग एक सीक्रेट चीज देता हूँ, ठीक है, जो मैंने बड़ा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी करना। देखो कभी भी इंटरव्यूअर के कभी भी आप ये मत बोलना, कोई भी, मैं बताता हूँ कि अगर इंटरव्यूअर बोलता है ना कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो कभी मत बोलना कि नहीं है मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप बोलना कि हाँ मेरे को है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यही होता है जो लैब में करते हो। इवन ट्रस्ट मी, जो आपके सॉक इंजीनियर्स होते हैं ना, जितना आप लोग लैब में करते हो ना, उसके 1/3 भी नहीं करते हैं रियल लाइफ में। उस दिन भर पॉलिसी में पोर्ट ऐड करते रहते हैं, या फिर कोई पॉलिसी के अंदर कोई आईपी ऐड करते रहते हैं। इसके अलावा कोई काम उनके पास नहीं रहता है, ट्रस्ट मी। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप ये मतलब, मैं थोड़ा एक आध लोग म्यूट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट ना, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। तो आप लोग को कभी भी ना इंटरव्यूअर अगर बोलता है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपको बोलना हाँ जी है, ठीक है। कभी ये नहीं बोलना कि नहीं है। हाँ, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करना है, ये आपकी टोटल एंड टोटल लैब प्रैक्टिस आपको उसको प्रूफ कराएगी। कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, या कहीं से भी आप क्लासेस लेते हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्टर आपको लैब कराता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस लैब को करें, या उस वीडियो को, उस कॉन्सेप्ट को समझें। ट्रस्ट में, अगर आप उतना कर लोगे या उसका 50% भी कर लोगे ना, तो आप अगर जॉब पे जाओगे ना, तो उसका 25% भी आपको करने को नहीं मिलेगा, और बोलेंगे कि हाँ, आप तब आपको लगेगा कि मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन आप उससे ज्यादा लैब में कर सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक एसडीबीएन नहीं आता कोई बात नहीं, आप हैंड्स ऑन नहीं है कोई बात नहीं, आप लैब करो ना। आपने क्लासेस ले रखी है एसडीबीएन की, लैब करो उसको। आप 1-2 महीने बिल्कुल लैब रेंटल पे लो, नहीं डिवाइस है कोई बात नहीं, उस 2 महीने के अंदर लैब को पूरा कंप्लीट करो, और अपने आप को बोलो मार्केट में कि मेरे को एसडीबीएन का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मैंने डिप्लॉय किया एसडीबीएन, मैंने वी मैनेज लगाया है, मैंने वी स्मार्ट लगाया है, मैंने वी बॉन्ड लगाया है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन की है।
आप इंटरव्यूअर को चैलेंज करो, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कोई निकाल के थोड़ी बाहर से लाएगा, क्वेश्चन तो वहीं से पूछेगा ना कि भाई वीएच राउटर कैसे लगता है, उस पे लैन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, उस पे ओएमपी प्रोटोकॉल कैसे चलता है, उस पे आप पॉलिसी कैसे बनाते हो, उतना चीज आपको आता है तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया। बोलो कि मेरी कंपनी में चल रहा है, मैं करके आया हूँ, तो बी कॉन्फिडेंट। पालो अल्टो फाइबर जैसे श्याम ने बताया, तो मैं बताऊंगा पालो अल्टो को बोलो कि हाँ जी मैंने पालो अल्टो पे काम किया, मेरे को पालो अल्टो कॉन्फ़िगरेशन आती है, मुझे पालो अल्टो में पॉलिसी बनाने आता है, मुझे पालो अल्टो में टैप मोड आता है, लेयर 3 मोड आता है, मुझे जोन आता है, मुझे एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट आईडी, यूजर आईडी, डिक्रिप्शन आता है, मुझे कंटेंट आईडी आती है, मुझे एचए आता है। अब वो पागल हो जाएगा, वो कहाँ से पूछेगा बंदा, वो खुद ही घबरा जाएगा कि बंदा को इतना कुछ आता है, मैं इससे क्या पूछूं। तो एक बार ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे डाउन हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही बोलते हो कि नहीं जी मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है या मैंने सिर्फ ट्रेनिंग ली है, तो उसके दिमाग में आपके प्रति ना उसी समय निगेटिव आ जाता है कि यार ये बंदा ना मतलब कि मेरे लायक नहीं है। सो कभी भी ये गुरु मंत्र लो या इसको बना लो अपना एक संजीवनी, कि कभी भी इंटरव्यूअर पूछे अगर लाइफ में कि भाई डू यू नो डू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो बोलो यस आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नहीं आएगा तो फेल ही करेगा ना, क्या करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो दिखाओ वो अपना। तो वैसे भी कर ही रहा है। ऐसे भी कर ही रहा है, चांस आप ना लेना बोलोगे चाहिए। तो भी करेंगे। तो क्यों नहीं रिस्क ले, राइट तो श्याम? थोड़ा सा उसमें पंकज राइट सर, राइट सर। एक हाँ जी विशाल सर एक बताइए। हाँ हाँ, बताइए अब सर। आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ आई आवाज होप। ठीक है, बताइए। हाँ एक बड़ी अच्छी फिल्म है, आप लोग मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सब देखना, विल स्मिथ की एक फिल्म है, हिंदी में भी अवेलेबल है, उसका नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज में से एक है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब होता है कि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो आपका काम हो, आपका पैशन हो, व्हाटएवर, आप उसका पीछा कीजिए, आप उसको परसू कीजिए। ठीक है, सो परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज वन ऑफ द फंडामेंटल, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना इंडियन सिटीजन के, उसी तरह उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो उसमें जब विल स्मिथ इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे पूछता है, तो विल स्मिथ अपने बारे में बताता है, आप लोग इसको कॉपी मत करना बट अपने अपने हिसाब से इम्बाइब करने की कोशिश करना, कि वो कहता है उससे कि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं उस तरह का आदमी हूँ कि जिसको अगर कुछ नहीं आता है तो वो आपके मुंह पे बोल देगा कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में, बट आई विल नॉट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस आई फाइंड दैट नॉलेज। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसका जवाब जो मुझे नहीं आता है वो पता नहीं कर लेगा। ठीक है, कहने का मतलब बस वही है कि ठीक है, आप इंटरव्यू में जो पंकज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बोलो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वंस यू आर इन डोंट स्टॉप टू फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन, हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपको वो जरूरत पड़े तो इंटरव्यूअर या ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं लगे कि आपने झूठ बोला, बिकॉज दैट बिकम्स एन इंटीग्रिटी इशू इन दैट। आप सीख लो, सीखने के बाद आपका हाथ पकड़ रहा है। राइट राइट। और हैंड ऑन एक्सपीरियंस की जो सर बात कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए थोड़ी जा रहे हो, डेस्कटॉप थोड़ी खोलना, डेस्कटॉप रिपेयर थोड़ी करना, लैपटॉप थोड़ी खोलना है आपको, जो भी करना है आपको अपने या CLI पे करना है या GUI पे करना है, आप लैब करोगे तो सारा चीज हो ही जाएगा वहां पे। तो राइट राइट राइट। मोहरावत एंड Right, sir. निरंजन, आप लोग कुछ कहना है, कुछ आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं? मोहरावत। यस सर, मेरा नाम Yeah. मोहित है, तो थोड़ा सा मैं भी जस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डेफिनेटली थोड़ा डेफिनेटली, सा वेलकम वेलकम मेरी स्टोरी भी कुछ ज्यादा ही वैसी है। एक्चुअली सर, it's almost 8 years of experience in IT networks. I started my career very low type of job, like field engineer. I was a field engineer with Wipro as a third party payroll employee. Then I moved to the British Telecom as a like अभी सर कह रहे थे ना, ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो 2.5 साल के करीब मैंने वहां पे काम किया। 1 साल का मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल था विप्रो में, वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने चेंज किया, तो मैं 2.5 साल मैंने एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट में काम किया थर्ड पार्टी पे। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली IJP के थ्रू इंटरनल जाने की, तो 3.5 साल रिवरबेड में काम किया। आई थिंक आपको पता होगा रिवरबेड वगैरह, जो एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजर ये टाइप से, स्टील हेड। हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा ग्रो भी किया, मतलब L1 मैंने ज्वाइन किया था डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद। उसके बाद मैं वहाँ पे सीनियर सर्विस रिलायबिलिटी इंजीनियर भी बना। तो लगभग 6 साल के करीब मैंने कंप्लीटली 5 साल 9 महीने BT में काम किया। और उसके बाद ये रिसेशन वगैरह का सीन, ये जो कोरोना का पीरियड आया था, उसमें 2 साल हमारा अप्रेजल नहीं हुआ। तो मैंने हाथ पैर मारे थोड़े से इधर उधर। सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट था उस समय, मैं सोच रहा था कि मैं फायरवॉल सीखूंगा ये वो। तो अपॉर्चुनिटी मिली कैपजेमिनी के साथ। कैपजेमिनी ने टेक ओवर कर लिया ऑल्ट्रॉन को, उनका टैक्स स्कोर टैग को।
तो right now from last 15 months I am working as a technical support engineer, like a tech engineer Cisco के लिए। तो अच्छा, प्रोजेक्ट सिस्को प्रोजेक्ट, और मैं कंपनी कौन सी सिक्योरिटी है? में हूँ। कॉग्निजेंट में, राइट? कैपजेमिनी सॉरी, कैपजेमिनी, राइट हाँ, ऑल्ट्रॉन था ना पहले, तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया कैपजेमिनी ने, तो अब कैपजेमिनी देख रहा है सारा। तो मैं मतलब इनका ट्रिपल ए सिक्योरिटीज में हमारी 3 टीम है, वीपीएन, फायरवॉल एंड ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में वो अपना सिस्को आइस है, तो मैं उस पे काम करता हूँ। बट अभी सिचुएशन ये है कि 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अराउंड 9.5 लाख का पैकेज है, और अब फंसा हुआ, अब कंफ्यूज हूँ इसमें जाऊं, क्लाउड में जाऊं कि साइबर सिक्योरिटी में जाऊं कि फायरवॉल सीख लूं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ बहुत बारी। डिसीजन मैं हाँ, समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, मैं समझ सकता करूं हूँ। क्या, मतलब अभिषेक सर से बात हुई थी, और मैंने आपका रैंडमली मैं गुईनेट के इस पे आया था यूट्यूब में, एक दिन ऐसी पालो अल्टो ढूंढ रहा था, और जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है कि रैंडमली मैं आया था, फिर मैंने अभिषेक सर से कॉल करके इसमें जो नंबर दिए उनसे बात करी, मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं जस्ट आपके 2 दिन से सेशन ले रहा हूँ, कल का भी लिया था, और अच्छा आज अच्छा भी मैंने अच्छा। उनसे खुद से लिंक मांगा है कि यार वो वाला लिंक दे दो, जूम पे मुझे भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ चीजों को लेके कि नहीं नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली एग्री कि जिस हिसाब से आपका प्रोफाइल है, एंड और मैं सही बताऊं तो सर, मुझे राउटिंग स्विचिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे काम ही करने को नहीं मिला। रिवर्बिट इज नथिंग लाइक अ राउटिंग स्विचिंग, इट इज अ एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजर डिवाइस, जहां पे सिर्फ वैन ऑप्टिमाइजर है, तो उस पे कभी राउटिंग स्विचिंग का ऐसा कुछ रोल ही नहीं रहा है, सिर्फ हमने अपग्रेड कर दिया उसको, उसका रायोस अपग्रेड कर दिया, जो भी है उसमें उसके मतलब एमटीयू वगैरह बढ़ा दिए, घटा दिए, बस यही सब रहा है 3.5 साल, और अब यहाँ पे जाके अब मोहित जी, मेरे को आ रही है अभी दिक्कत। जहाँ पे टैग में काम कर रहे हैं ना, सौरभ सर, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं मोहित जी को थोड़ा सा मैं कुछ गाइड कर लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। सॉरी फॉर दैट। सो मोहित जी बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अभी जहाँ पे आप काम भी कर रहे हैं ना, इट्स वेरी लिमिटेड, ट्रिपल इज वेरी लिमिटेड स्कोप। डोंट माइंड, मैं बहुत मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि आई वर्क वेरी क्लोजली विद द टैग पीपल, वेरी क्लोजली। बट टैग में एडवांटेज तो ये है कि मैं टैग इंजीनियर हूँ, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को बोलने में। सिर्फ लेकिन अच्छा ही प्रॉब्लम लगता है सर। मैं वही बता रहा हूँ कि अच्छा, सिर्फ अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि टैग इंजीनियर्स के साथ दिक्कत ये होती है, जो मैं उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बंदा अपने आप को सिर्फ लिमिटेड जो स्कोप उसको मिला हुआ है कि मेरे को वीपीएन देखना है, मुझे को स्विच देखना है, मुझे राउटर देखना है, मुझे ट्रिपल ए देखना है, अगर वहीं तक उसने लिमिट कर लिया, तो बाकी दुनिया जो है ना, टैग क्या करता है, किसी एक चीज में ना आपको स्पेशलिस्ट बनाता है, एक्सपर्टीज बना देता है, बाकी दुनिया की चीजें आपके लिए बेकार हो जाती हैं। लेकिन मार्केट ऐसा है नहीं, मार्केट इंटरप्राइज कंपनी ऐसा है नहीं। इंटरप्राइज में आप जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपको सिर्फ ट्रिपल ए आता है। ट्रिपल ए तो हम सीसीएनपी में पढ़ाते हैं पूरा, इनकोर में ट्रिपल ए क्या होता है, कैसे होता है, तो जस्ट मॉड्यूल, आईएस का मॉड्यूल हम पढ़ाते हैं, तो उसमें मतलब सीसीआई में करते हो तो उसमें भी आपको सीख लेते हो। तो द डिमांड इन अ मार्केट इज कि आपके पास आज बेसिक फंडामेंटल राउटिंग स्विचिंग आती है कि नहीं आती है, प्लस आपको एसडी बैन आता है कि नहीं, जिसमें राउटिंग स्विचिंग इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको क्या कोई अच्छी फायरवॉल आती है, लाइक वाइज चेक पॉइंट, लाइक वाइज द फोर्टिनेट, लाइक वाइज द आपका पोलो अल्टो फायरवॉल, इनमें से तीनों में से कोई एक आपको आता है? अगर इतना आपको आता है, बेसिक नेटवर्किंग प्लस फायरवॉल या एसडी वैन आपको आता है, तो आप ट्रिपल ए के साथ बड़े आसानी से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, अपने पैकेज को 2x 3x कर सकते हो। 8 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही एक ऐसा एज होता है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस जो ऐसा एक एज होता है, और उसमें अगर आपका सिंगल डिजिट में पैकेज है, सिंगल डिजिट का पैकेज मतलब कि 10 लाख से कम है, तो वो थोड़ा सा वरीसम होता है। मुझे लगता है कि अगर किसी का 5+ आज के डेट में अगर एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ऐसा खुद का रिसर्च है, अगर मानता हूँ किसी बंदे का 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसका पैकेज डबल डिजिट में होना चाहिए, सिंगल डिजिट में नहीं होना चाहिए। और किसी का ऑलरेडी 10 का एक्सपीरियंस है, किसी का 9 का एक्सपीरियंस है, 8 का एक्सपीरियंस है, तो ऑलमोस्ट उसका 15-14 ऐसा होना चाहिए। जो मेरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, दे आर गेटिंग, और किस बल पे लेते हैं, या तो उनको कोई अच्छे से फायरवॉल आती है, थोड़ी बेसिक राउटिंग स्विचिंग आती है, या कोई जीएस कलर का प्रॉक्सी वो जानते हैं, या एसडी वैन जानते हैं। इनमें से कोई एक दो कॉम्बिनेशन पकड़ लो, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका हो जाएगा। और जिस हिसाब से आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपकी कॉम स्किल, आपने बीटी जैसे कंपनी में काम किया 5 and 6 ईयर, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ग्लोबल उनका प्रेजेंस है। तो आपके सीवी में ऑलरेडी विप्रो है, बीटी है, एंड आपके पास कैप जेमिनाई है, आपने बताया अभी, जो सिस्को का टैग। तो ऐसे प्रोफाइल लेकर आप जब किसी के सामने देते हो ना, तो बीइंग अ हायरिंग मैनेजर ना, एक बार आपके सीवी लोग पढ़ते हैं कि बंदा ऐसी कंपनी से आया है, तो उसकी वेटेज मिलती है।
तो सर मैं ये प्रोडक्ट बोलूंगा में कि लैग कर रहा हूँ हाँ, मैंने, तो मतलब अगर मैं अपनी जान पहचान की ही बात करूं तो जो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, हाँ, सीनियर सीनियर मैनेजर्स लेवल पे भी हैं काफी सारे, जिनको पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं एक लोकल आईटी इंजीनियर भी था, तो उसमें आपको हाँ, पता है कि अच्छा खासा पीआर बन जाता है सबके साथ, हायर राइट, लेवल के लोगों के साथ। तो अब वो पीआर यूज करने का टाइम आया है, तो जस्ट वहां पे फंसते हैं कि यू हैव लैक ऑफ प्रोडक्ट, इफ स्किल्स देयर इज स्किल्स, हाँ, यस स्किल्स, इफ हाँ, मैंने पीछे रिसेंटली इंटरव्यूज भी दिए हैं, वहां पे यही हुआ, जितना मेरा जो प्रोफाइल है वो मेरा सारा ओके है, बट अगर मेरे पास एक एड ऑन होता, वट एवर, चाहे फोर्टिनेट होता, चाहे मेरे पास पालो पॉलो ऑल्टो ऑल्टो होता, होता, F5 चाहे होता, SD-WAN तो मेरा होता, सिलेक्शन हो कुछ भी होता, जाता, हो जाता L3 पे सिलेक्शन, सिलेक्शन था, हो जाता है। मैं तभी तो वही बोल हो रहा रहा हूँ है कि कि लैग आपको कर रहा हूँ। आपको दो प्रोडक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अगर राउटिंग स्विचिंग में आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अभी जो है ना, फ्यूचर इज जी स्केलर एंड फ्यूचर इज द फायरवॉल, ठीक है? तो आप किसी एक फायरवॉल को कर लो, साथ में जी स्केलर कर लो। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि ट्रस्ट में 10 साल में जितना ग्रो करोगे ना, आपने सोच भी नहीं रखा होगा। आप अगर जी स्केलर या प्रिज्मा एक्सेस अलॉन्ग विद द फायरवॉल आपने कर लिया, भूल जाओ क्लाउड, सब कुछ भूल जाओ, कि आप इतना ग्रो कर सकते हो करियर में कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर है, दिस इज द फ्यूचर। क्लाउड सिक्योरिटी ही तो है, ये सारी चीजें लोगों को मेरे पता ही दो नहीं है इसके बारे टीममेट में। गए हैं सर जी स्किलर में, एक किसी थर्ड पार्टी पेरोल पे गया है और एक उस पे गया है, दोनों 20+ के पैकेज पे चले गए, मेरे मैं बोल तो साथ रहा के जो मेरी टीम में ही काम कर रहे थे, हूँ मैं और हम बोल तो उनसे रहा हूँ आधे पे कि हैं अभी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संजय संजय सर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो और राइट ट्रैक पे। संजय सर बोल रहे हैं कि मेरे को 15 लाख एक्सपीरियंस है, 10 लाख का पैकेज है, डोंट वरी सर, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। पॉलो ऑल्टो फायरवॉल को बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैंने कर रखा है और मुझे आती है, और लैब करो सर, बिल्कुल लैब करो, जितना सपोर्ट होगा हम आपको देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैब करो, लैब करके इंटरव्यू में अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, अपने बेसिक स्किल्स पे वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करते हैं। कई बार हम ना पैसिव माइंड से सोचते हैं, कई बार हम एक्टिव माइंड से सोचते हैं। जब एक्टिव माइंड हमारा रहता है तो हम बहुत सारी चीज उसमें से ग्रैप्स करते हैं, जब पैसिव रहता है तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा ही देखो, लेकिन उसका नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। जब उसको नोट्स आप बनाओगे ना, तो यू विल गेट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन योर लाइफ। तो एकदम 100% होगा सर, मैं बता रहा हूँ। और नहीं नहीं, अभिषेक राइट सर सर, का, अभी मैंने हाँ, वही स्टार्ट किया है। अभी जो आपकी वीडियोस थी सारी, उनको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। और अभी मैंने क्या किया, पहले मैं क्या करता था, डायरी में नोट्स बनाता था। तो डायरी में क्या होता है ना, कुछ पॉइंट हुआ तो वो फिर कहाँ पर ऐड होता है, दूसरी डायरी में होता है। अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, अब मैं A4 की सीट लेता हूँ, मैंने डायरी हटा दी, A4 की हाँ, सीट के नोट्स बनाओ। कुछ ऐड करना है तो वो A4 की सीट उसी के सीक्वेंस में लगाते रहो, तो आपके नोट्स प्रॉपर रहेंगे। तो मैं तो जो मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो A4 की सीट पे बनाओ, डायरी वायरी सब भूल जाओ आज के समय में। बिल्कुल सर संजय उससे जी, भी बिल्कुल। कन्वीनियंट है कि अगर आप सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाओ, बहुत सारे नोट्स के ऐप आते देखो, हैं। मैं आप लोग नहीं, एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आप लोग एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। देखो, मैं हमेशा ना सेम एक, टूल आई एम यूजिंग। हाँ, नो सर, नो सर, बहुत नोशन में अच्छा यूज टूल है करता सर, ये हूँ। बहुत अच्छा टूल है, हाँ, तो मैं बहुत क्या अच्छा। करता हूँ कि मैंने मैं जब आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ ना, जब कोई भी लेक्चर होता है, तो मैंने ना सारे मेरे नोट्स इसमें बने हुए हैं, चाहे CCNA का हो, CCNP का हो, देखो जी स्किलर का है, पॉल ऑल्टो का है, और सर SD-WAN इसका का है, प्लस पॉइंट क्या है, आप अपने लैपटॉप के साथ मोबाइल पे भी इसको इंस्टॉल कर लो और कहीं आपको भी सिंक खोल होता सकते, कहीं रहता भी है। तो मुझे सर ये याद आपका रहता है कभी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कभी खोएगा नहीं और आप ऐड एडिट कभी भी कर राइट, सकते राइट। हाँ, लेकिन देखो, रिटर्न में थोड़ी सी चीजें बढ़ जाती हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, यहाँ मैं पर हम क्या आपके करते हैं ना, स्क्रीन शॉट आपने लगाने लग जाते हैं। नहीं हाँ, नहीं सर, मैं आप, उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स, हम्म, पर्सनल नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब हाँ, हम हाँ, सॉफ्ट नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने लग जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट में क्या होता है, हाँ, अच्छा ये दिखा, अच्छा लग रहा है, इसको भी कैप्चर कर, ये भी कैप्चर कर। जब बंदा राइट करता है ना, तो उसको पूरा हाँ, लिखना पड़ता है। तो वो चीजें अगर 10 लाइन लिखेगा तो 2 तो उसको डेफिनेटली याद रहेगी। दिमाग में घर कर जाते हैं। ये तो बिल्कुल हाँ, आप सही कह और रहे 2-4 बार और देखेगा तो सर वो उसको 4-5 लाइन इंटरव्यू लायक तो हो ही जाएगा। जैसे राइट, आप राइट, पढ़ा रहे थे, आपने बताया था, जैसे आप पॉइंट आउट करते रहते थे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जैसे आपने हम्म, बताया कि भाई पैकेट फ्लो इंटरव्यू का में पूछता है, और मेरे साथ पूछता ही हुआ पूछता है ना। हाँ, अब पैकेट फ्लो में बंदा वहीं पे उसका मतलब वो खत्म हो जाता है, मतलब पैकेट फ्लो ध्यान ही नहीं देता, वो आगे को ध्यान देता है। हाँ, मुझे कहाँ आगे पर का ध्यान देता डैशबोर्ड है और कॉन्फ़िगर उसको करना है, कहाँ पे। और इंटरव्यूअर से हाँ बेसिक से पूछता है, भैया पैकेट फ्लो बता दे अच्छा सबसे पहले तो, कि तभी यार मैं पैकेट फ्लो एम्फसाइज तो नहीं करता हूँ, पता। तभी मैं एम्फसाइज बार बार करता हूँ कि जब भी मैं सेशन देता हूँ राइट। कि मुझे पेन पता है कहाँ पे होता है, कि मैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी 15-16 साल से हूँ। और ऑल्सो लाइक कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर मेरा ऑलरेडी असाइनमेंट्स है, मैंने काम किया है। तो मुझे पता है कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, लोग पूछते क्या है। मैंने कितने सारे इंटरव्यू लिए होंगे, मोर देन सर हजारों मैं वही प्लस कह रहा हूँ इंटरव्यू ना, लिए। कंपनी में एक बार आप घुस जाओ, आपको याद हाँ, होगा पंकज सर, एक लेडी थी हमारी क्लास में, उसको हम्म, ये नहीं पता था ISP क्या है, अगर आपको याद हो तो, कितने क्वेश्चन पुट अप करती थी।
हाँ याद है? या हाँ याद रीना मैं रीना नाम नहीं रीना लूंगा, अरे सर नाम नहीं ले रहा था मैं, लेकिन वो हमारे इंग्लिश बैच में थी, हिंदी में भी थी, बट उसका एक दिन हाँ क्वेश्चन था कि मतलब वो मेरे सीसीएनए के बैच में भी थी, तो अच्छा उसने बोला ये आईएसपी क्या होता है, तो मतलब हाँ द ट्रेनर वाज सेइंग वो चने बेचता है। अगर हम्म आपको यही नहीं पता कि आप आईटी में हो, आपको पता ही नहीं आईएसपी क्या होता है, देन मतलब वो बड़ा गलत फीडबैक था कि हाँ नहीं ये ठीक है होता एयरटेल है कई कैसे बार करता है, ये कैसे हाँ करता है। तो आपको कुछ पढ़ना, तो आपको बेसिक तो करने पड़ेंगे, ट्रेनर आपको घोट के नहीं पिला सकता, आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आप सोचो सही राइट बात है, मैंने अगर आप ट्रेनर को पैसे दे दिए और वो सब कुछ पढ़ाएगा स्पोकन नहीं। इंग्लिश के क्लास में गए हो तो एबीसीडी थोड़ी आपको ट्रेनर पढ़ाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड है ना। नहीं वहां पर हुआ था ऐसा, पंकज सर के साथ हुआ था, मैं मतलब आई वाज द पार्ट ऑन द बोथ क्लासेस, तो सर को ये भी याद आ गया था कि आप तो पुराने बैच में भी थे। हाँ और एक इसका एक लॉन्ग डिस्कशन है, मतलब मैं कई कई डिस्कस बार नहीं कर होता है सकता, कि कई बार पंकज ना सर को आप सारा जब याद आ गया होगा, इसका बहुत लॉन्ग हाँ डिस्कशन है। क्योंकि एक दिन तो मैं एक क्लोज ही मतलब क्लास क्लोज करनी पड़ गई थी। कई बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं कि जो राइट, मैं भी थोड़ा सा नाराज हो गया था बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे डिस्कशन नहीं वो रॉन्ग डायरेक्शन में क्वेश्चन चले गए। ऐसे थे ना, मतलब हाँ वो बार बार रिपीट करना, एक चीज को 4 बार रिपीट कर दिया और आप फिर बोल रहे हो नहीं, अब पूरा वहां पर मतलब 50 लोग क्लास में, आप बोल रहे हो नहीं इसको रिपीट करो, तो वो गलत है। मतलब 4 बार समझाने के बाद अगर आप उसको नहीं ग्रैब कर पा रहे हो तो इट्स योर ओन प्रॉब्लम, मतलब आप उसमें सबका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। राइट कोई बात नहीं होता है थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मैं तो भूल भी गया था ऐसी चीजें होती हैं। मैं वो वीडियो देख रहा था, मुझे बार बार याद आता है। ओके सर, सॉरी, ओके ओके यू कैन कैरी ऑन। ऑलराइट सो यस सौरभ जी आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैं आपको रोक दिया, कहाँ गए सौरभ जी हमारे, आई थिंक कहीं है, ठीक है। एनीवन एल्स, विष्णु जी अभी आए हैं शायद, हेलो विष्णु सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, मैं अभी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज देखा। अच्छा हाँ जी सर। तो हम यही बात कर रहे थे कि मतलब अबाउट द एक्सपीरियंस, फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा, क्या रहता है करियर प्रोग्रेशन, क्या एक्सपीरियंस है आपका नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, आप कहाँ काम कर रहे हो, तो लोग अपना अपना व्यू शेयर कर रहे थे, हम उस पर और कुछ ऐड कर रहे थे कि और क्या हम बेटर कर सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो वे जस्ट टॉकिंग की जी मतलब सर। कि हमने ये ऐसा शो हम मंथली या मतलब हर 15 दिन पे किया करेंगे, ताकि कई लोग हैं ना बड़े डाउट्स होते हैं और हम सबका आंसर नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं एक फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे लोग आए अपने क्वेश्चंस पूछें, कुछ भी दिमाग में बात हो तो मतलब बात कर सकें। तो बात करने का भी जरिया होना चाहिए, पढ़ाई तो हम रोज ही करते हैं कोई करेक्ट बात सर। भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो आप सही अपना सर। थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो तो लोगों को आपके बारे में पता चलता है। हाँ जी सर। सर मेरे को है ना टोटल अप्रोक्स 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें 6 इंटरप्राइज पे तो अभी 2 साल का ही है। 2 साल में मतलब 2 साल पहले तक मैं जियो में था, तो जियो में तो चाबी और डीजल ही करना रहता है, चाबी कहाँ है डीजल कहाँ है, ठीक है। 2 साल पहले जब ग्रोथ रुक गई वहां पे काम करते करते 6 साल हो गए, तब मतलब कुछ भी आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद फिर इंटरप्राइज पढ़ना चालू किया। अब इंटरप्राइज पढ़ना चालू किया तो वही यूट्यूब पे सीसीएनए के वीडियो इधर उधर से सर्च करे देखना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरा हिंदी स्पीकिंग जोन में काम किया, इंग्लिश आती नहीं, तो क्या करें कैसे करें, तो वो बस देखना चालू किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी देखते रहे। 1 महीना लगा, 1 महीने तक कुछ भी समझ में नहीं आया। कॉपियों में बस वीडियो पोस्ट कर करके लिखते गए, लेकिन 1 महीने के बाद चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग गई। 4 महीने कंटिन्यू पढ़ाई करी, 4 महीने में इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आने लग गई, और उसके बाद में इंटरव्यू देना चालू किए, तो मैं 31 इंटरव्यू में कंटिन्यू रिजेक्ट हुआ। अरे गुड यार, आप हमारे लिए मतलब एक तरह से रोल मॉडल हो हम सबके लिए, इंस्पायरिंग हो, मतलब ट्रस्ट में विष्णु जी। हाँ थोड़ा सा ऐड कर दूं पंकज जी, वहाँ जैक मा भी 21 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद उसने अलीबाबा बनाई थी। और लास्ट इंटरव्यू उसका मैकडोनल्ड्स का था, जब चाइना में मैकडोनल्ड्स खोला था, जिसमें 7 लोग एम्प्लॉय हुए थे उसी दिन, 8वां जैक मा रिजेक्ट हो गया था। अच्छा और हाँ जी उसके बाद विष्णु जी बताइए। उसके बाद सर 32 नंबर के इंटरव्यू में मैं भी मतलब मैं उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जो मुझे आता था वो बताया, तो वो मैनेजर जो थे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि देखो विष्णु, टेक्निकली तुम उतने साउंड नहीं हो, लेकिन मतलब जो तुम्हारी इंटीग्रिटी है उस पर मैं भरोसा कर रहा, मतलब जो तुमको आता है वो तुम बोल रहे हो कि आ रहा है, जो नहीं आता वो नहीं आ रहा है, तो मैं तुमको ले रहा हूँ, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, बस मेरे को है ना निराश मत करना मेरी टीम में आने के बाद में। जैसा ज्वाइन किया, 6 महीने मैंने वहां काम किया, वहां का हाईएस्ट टिकट टेकर था मैं, मतलब
अच्छा हाईएस्ट टिकट टेकर था। उसके हम्म। बाद में फिर मैं दोबारा ट्राई किया, दोबारा में मैंने बैक टू बैक 7 ऑफर लेटर क्रैक किए बिना रिजेक्ट हुए। अरे गुड यार, गुड गुड। अभी मतलब मैं पेरोल तो मेरा दूसरा है, लेकिन मेरा क्लाइंट वेरिजॉन है। वेरिजॉन और इट्स अ वेरी गुड कंपनी, मतलब USA, बहुत हाँ। अच्छा क्लाइंट है यहाँ। और उसके बाद हम लोग क्या है ना, लगभग 3000 कस्टमर है, तो मैं L2 सपोर्ट वहाँ पे काम कर रहा हूँ। L2 तो हम लोगों से नीचे 2 टीमें और होती है, अगर उनसे कोई काम नहीं बनता है तो वो हम लोगों के पास में आता है। 7 फ्लेवर हमारे पास SDVAN के हैं भैया, ठीक है। और यही सब चल रहा है सर। तो मतलब 2 साल में जीरो से यहाँ तक आया मैं। 2 साल पहले तक मेरे को IP कितने बिट की होती ये भी पता नहीं था। और ट्रस्ट में जैसे आपने जो स्टोरी बताया ना, मतलब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी करियर स्टार्ट किया था एक टेलीकॉम कंपनी के डोमेन से, ठीक है। मुझे आईपी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो विशाल सर इन सबको मैं अपना थोड़ा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं पहली बार CCNA पढ़ा ना, तो मेरा सब कुछ ना हवा ऊपर से निकल गया। मैंने पेड मतलब ट्रेनिंग ली थी। नेटवर्कर्स होम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली में थी, जनकपुरी के अंदर, ठीक है। तो मैं खोजते खोजते वहां पहुंच गया, किसी ने बताया कि पढ़ लो प्रोटोकॉल, तो मैं चला गया। अब वो आज भी ट्रेनर हैं, आई रिस्पेक्ट सो मच, कि बेचारे बहुत हेल्प किए उस समय। बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था, कुछ भी समझ नहीं आया था कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कर। मैं डेली क्लास जाता था, वहां समोसे जलेबी मिलते थे, हम खा के आ जाते थे, हम वही खुश रहते थे बस कि चलो ठीक है, टाइम पास हो रहा है। लेकिन मैं यही बार बार लोगों को समझाता हूँ कि जब कोई फ्रेशर आता है मेरे बैच में या कोई भी सीखता है, तो मैं बोलता हूँ कि देखो, जब आप यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो इट्स नॉट गारंटी कि आपको पूरी 100% चीजें सिखाएगा कोई, ठीक है। आप अगर 10% भी चीजें सीखते हो, या एटलीस्ट आप टॉपिक भी सीख लेते हो ना ट्रेनिंग में, तो आपके लिए वो एक एडवांटेज है। आप कभी उसे निराश मत हो। आप ये मत सोचो कि मेरा पैसा बर्बाद चला गया, मैंने कुछ सीखा नहीं, मेरा टाइम बर्बाद चला गया, नहीं, वो आपके लिए एसेट्स है। क्योंकि आपने टॉपिक का नाम तो सीख लिया ना, अगली बार जब पढ़ाई करो तो टॉपिक का नाम तो पता होगा, आपको आगे ही बढ़ना है ना एक स्टेप। तो आपको बार बार एंड हर बार प्रैक्टिस करना है। टेक्नोलॉजी एक दिन में कभी नहीं आती है समझ में, आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट में, आज भी मैंने SD-WAN को पढ़ने के लिए या तैयारी करने के लिए मैंने कितने आवर्स मैंने बर्बाद किए होंगे अपने एक पर्टिकुलर पॉलिसी को सीखने के लिए, या राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने को सीखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नया तो कोई मार्केट में बताने वाला भी नहीं था। बट पता नहीं क्या क्या मैंने सिस्को के लाइव्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रात रात भर मैं जग जग के 3-3 बजे रात तक पढ़ाई करता था कि चलो ठीक है। आज भी मैं पढ़ते रहता हूँ। तो टेक्नोलॉजी को आपको पूरा घोटना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू गो डीप एंड डीप एंड डीप, तभी आपको समझ में आएगी। तो यू आर जस्ट 2 साल में जो विष्णु जी आपने किया है ना, ट्रस्ट में, अगर ये डेडिकेशन आपका रहा ना, तो अगले 5 to 10 ईयर्स में आप इस लेवल पे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपने प्रैक्टिस बताया ना, इट्स लाइक हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और इसको बोल सकते हैं पूरा अपने आप को दे देना ना, वो सब किया आपने। तो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हुआ है ना सिर्फ अभी तक? सर हाँ 2 साल का है, लेकिन मैं अपने रिज्यूमे मतलब ईमानदारी से बताऊं, मैं जब भी इंटरव्यू अटेंड करता हूं तो 8 साल पूरा इंटरप्राइज में बताता हूं। मतलब 2 साल में जितना पढ़ा, जितना सीखा, उसको मैं 8 साल में कन्वर्ट करके, 8 हाँ साल में ठीक है। कन्वर्ट करता हूं। नो हार्म, नो, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तो नो हार्म, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इंटरव्यूअर को आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या लेना देना है, उसको आपको करंट नॉलेज। आप, मैं बोलूं कि मेरे को 15 साल का नेटवर्किंग का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है यार। मैं CCNA का, मैं ये नहीं पता है कि स्टैटिक राउट कैसे देता हूँ, तो मेरे लिए नॉलेज किस लिए, सब बेकार है मेरा नॉलेज हो, राइट? सही है सर। सर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ सर। BGP में पढ़ रहा था, ठीक है। तो BGP स्टार्ट किया है, उस टाइम वैसा पेड कोर्स वगैरह तो कोई लगाया नहीं था। तो BGP की मतलब ऐसी इंटरफेस टू इंटरफेस तो नेबरशिप में आप कर ली, मैं लूपबैक टू लूपबैक नेबरशिप मेरे से अप नहीं आ रही थी। आप बात मानेंगे 3 रात लगी थी मेरे को BGP की नेबरशिप अप लाने में, लूपबैक टू लूपबैक। 3 रात तक मैं कंटिन्यू कॉन्सेप्ट समझते समझते, और जब वो तीसरी रात में सुबह 4:30 बज रहे थे, और 4:30 बजे जब मेरी BGP की नेबरशिप अप आई थी ना, लिटरली मैं उस दिन रूम में 4:30 बजे रात को नाच रहा था। ये BGP मल्टी कमांड नहीं लगाए थे, राइट? नहीं लगाए थे, राइट। सो होता है, कोई बात नहीं, इट्स हैपन, इट्स हैपन। सो इट्स गुड, आपको कभी जिंदगी में भूलेगी नहीं कमांड, ठीक है, क्योंकि आपने 3 रहे। गुड विष्णु, आई रियली अप्रिशिएट एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप ग्रो करो। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर हियर। बहुत हमने लंबा डे, सुबह है, निरंजन है, राइट, गजेंद्र है, दिलीप है। अगर सर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट स्टिल इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। अपनी तरफ से सारे लोग, हाँ हाँ, कुछ भी अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब ओवरऑल दिस इज द गुड सेशन, एंड वी ऑल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एंड थॉट।
तो मैं तो ये बोलूंगा मतलब इसमें कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा, कुछ लोगों को अपना पता भी चला होगा, मतलब अभी आप कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। डेफिनेटली, इसलिए तो हमने आज हाँ, शो किया टेक शो, क्योंकि राइट, सारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो एक लो लेवल है, हाई लेवल है, मीडियम लेवल है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं एंड इट इज गोइंग टू बी हैपन। आज हमारे पास 15 लोग हैं, हो सकता है अगली बार हमारे पास 30 लोग हैं, और ये ग्रो ही होना है, राइट? क्योंकि और हम चाहते हैं दूसरा कि सर ज्यादा से मैं ज्यादा लोग। मतलब सॉरी आपको बीच में से इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा ये कहूंगा, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जिससे आप बिल्कुल हमारे साथ भी फ्रैंक बिहेवियर में है तो हम लोग इन चीजों को शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर राइट। एक ऐसा होता बिहेवियर के नहीं, हाँ भाई बताओ अपना अपना और मतलब आई एम द बॉस, तो उसमें क्या बंदे बता नहीं पाते हैं। तो नहीं मतलब नहीं जो नहीं मैंने नहीं। आपसे सीखा है, मतलब मैंने आपके साथ आई थिंक 4-5 महीने तो मैंने क्लास ली है, तो हाँ मतलब मेरे हाँ को आपका वे ऑफ टॉकिंग और जो समझाने का तरीका वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, क्या समझ हिंदी में समझना है, कौन सी हिंदी में समझना है, हिंदी में हाँ। समझा देंगे, इंग्लिश में समझा देंगे और इंग्लिश में समझा देंगे, मतलब जिसमें आपको कंफर्ट है उसमें समझा देंगे। नहीं तो यार वो संजय जी, हाँ ये मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे साथ जो भी मतलब जुड़ा, एक ऑनेस्टी हमारे पास, ठीक है, उसी को हम राइट, बेच रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा हार्डवर्क है कि जो हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो लोगों को दे दें, किसी का अगर भला होता है तो मार्केट में तो बहुत लोग हैं, राइट, एवरीवन इज राइट, डूइंग समथिंग समथिंग, बट हमारा ये रहता है कि बस यार एक पर्सनल टच होना चाहिए, थोड़े कम बिल्कुल, कम में रहो लेकिन अच्छे से रहो, वो ज्यादा दम में मैटर रहो, कम में रहो और दम में करता रहो। पंकज सर, है। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर अरमान बोल बताइए। रहा सर। मैं आपका हाँ जी। स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट आपके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, ठीक है, हाँ पॉलो हाँ। ऑल्टोस के एंड अदर वीडियोस। मैं फोर्टिनेट के लिए ढूंढ रहा था, मैंने बीच में लेक्चर भी अटेंड किया था फर्स्ट वाला। मैं हम्म एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पढ़ाओगे, एंड हम्म जब वीडियोस जो मैंने देखा आपके यूट्यूब पे, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द टॉपिक विच एवर यू हैव एक्सप्लेन देयर, हिंदी या इंग्लिश में थैंक यू। जैसे वो बोल रहे थे। तो मुझे ये हम्म। जानना है कि फोर्टिनेट आप कब पढ़ाने वाले हो सर, सो दैट आई कैन ज्वाइन क्लास विद यू। चलो ठीक है, आप लोग की ये भी तमन्ना पूरी कर दूंगा मैं, ठीक है, जल्दी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि सर मतलब कि। मेरा हाँ एक चीज कहना था सर, हाँ पहले राजेश जी बताइए। जी स्केलर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, और व्हाट इज द स्कोप ऑफ जी स्केलर इन आईटी इंडस्ट्री। राइट, अच्छा आई एम जी आल्सो इसके। इंटरेस्टेड इन द जी स्किल। अच्छा ठीक है, मैं जी इसका बताता हूँ आप लोग देखो। अब जब हम बात करते हैं जी स्किलर की, ठीक है, तो मैं इसलिए बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि जब भी अब टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, तो हम अभी तक लेगेसी राउटिंग एंड स्विचिंग की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एसडी वैन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फायरवॉल्स की बात कर रहे थे। तो जो फायरवॉल है राउटिंग स्विचिंग है, ये तो लेगेसी हो चुके हैं, ये ओल्ड हो चुके हैं। फायरवॉल ऐसा नहीं कि मतलब खत्म होने वाला है, लेकिन जो फ्यूचर है वो आपका एसडी वैन है, जी स्केलर है, ये सब आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो जो आपके, मैं बहुत कट एंड शॉर्ट बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कभी इसका डेडिकेटेड अभी सेशन जी स्केलर की मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कुछ ऐसा चीजें मैं लाने वाला हूँ, ऑलरेडी वीडियो मेरे पे शूट है, बट मैं इसको रिलीज करना है एक एक करके, तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है। तो जी स्केलर जो है ना, इट्स अ फ्यूचर, और मार्केट में इसके लिए कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स देते हैं क्योंकि हमारे पास है, राइट। तो क्या है कि जी स्केलर जो है कि इट्स अ क्लाउड सिक्योरिटी। जैसे आपने कंपनी बनाया तो आपको वहां पे फायरवॉल लगाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में कंपनियां में लोग काम नहीं करते हैं, मतलब ऑफिस, कहने का मतलब कंपनियां में लोग काम नहीं करते हैं, इसका लेट मी करेक्ट कि ऑफिस में लोग काम नहीं करते हैं, पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, people are working from airport, people are working from railway station, people are working while traveling। तो अब बताओ, कंपनी क्या हर जगह उनके रेलवे स्टेशन पे उनके लिए फायरवॉल लगाएगी? क्या उनके लिए फ्लाइट के पास फायरवॉल लगाएगी? क्या उनके घर पे फायरवॉल लगाएगी उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? द आंसर इज नो। क्यों कंपनी लगाएगी फायरवॉल? इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा सॉल्यूशन था वीपीएन। वीपीएन सॉल्यूशन देती थी कंपनी। वीपीएन इज लाइट वेट, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे और सिक्योर कनेक्शन बना लेंगे। बट वीपीएन के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसकी स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आने लगती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट ज्यादा करना पड़ता है, आपका डिपेंडेंसी एक सिंगल डेटा सेंटर पर हो जाती है। अगर वो डेटा सेंटर डाउन हो गया तो वीपीएन बॉक्स भी डाउन हो गया, तो आपके सारे यूजर इफेक्ट हो गए। तो ये सारे चैलेंजेस वीपीएन के अंदर थे। तो इसका जो फ्यूचर एक निकाला है, एक सैसी प्लेटफॉर्म आया, जो हम कल भी बात कर रहे थे, अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा मेरे पोलो ऑल्टो फायरवॉल का सेशन, तो सिक्योर एक्सेस सर्विसेज सॉल्यूशन आया। इसके अंदर हमारे पास तीन मेजर वेंडर हैं। एक हमारे पास नेट स्पोक है, ठीक है, एक हमारे पास जी स्केलर है। नेट स्पोक नंबर 1 पे है, जी स्केलर से भी ऐसे सोल्यूशन में, जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं है बात, ठीक है, लेकिन जी स्केलर का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। और तीसरा हमारे पास पोलो ऑल्टो है, जिसको भी बहुत पीछे है अभी, जो 3 लीडर है मार्केट के।
तीनों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बॉस आपको ना फायरवॉल लगाने की टेंशन है, ना आपको वीपीएन लगाने की टेंशन है। मैं आपको ओवर द इंटरनेट ही एक ऐसा डेटा सेंटर बना के देता हूं अक्रॉस द ऑल ग्लोब कि आप बस मेरे पास आ जाओ, अपने लैपटॉप पे इंटरनेट से कनेक्ट करो और आप बस मेरे पास आ जाओ, मैं बाकी सिक्योरिटी आपके लिए केयर करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द हाउ Zscaler कम इन पिक्चर। इनके दो सॉल्यूशंस हैं, एक Zscaler GIA है, Zscaler इंटरनेट एक्सेस, Zscaler प्राइवेट एक्सेस, जीपीए जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन बेसिकली आपके इंप्लीमेंट होते हैं ये पूरा 360 जो आपकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए Zscaler इज लाइक फ्यूचर। अगर आप Zscaler का डिमांड देखो 2025 में Zscaler का इतना हाई डिमांड होगा, इतना हाई डिमांड होगा, क्योंकि अभी तक मात्र 15 to 30% कंपनीज आर एडप्टिंग द SASE सॉल्यूशन। अभी भी 70% मार्केट अभी खाली है और दे आर गोइंग टू अडॉप्ट बाय 2025 और 2026। तो आप सोच सकते हो 3 साल के अंदर इसका कितना डिमांड होने वाला है। तो सिक्योरिटी तो फाउंडेशन है, आपको आना ही चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी आपने सीख लिया है, अगर साथ में Zscaler सीख लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा Zscaler सीखना, अगर सिक्योरिटी आता है तो आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाएगी एंड यू कैन जस्ट रॉक स्टार इन द SASE सॉल्यूशन। तो जस्ट मैं अभी यही बताता हूँ, बाकी मैं सेपरेट सेशन इसके लिए लूंगा और उसमें सारी चीज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है राजेश सर? यस सर। ओके, सो आई बिलीव एनीवन एल्स, कुछ एक सरवत खान जी भी ज्वाइन किए, एनीथिंग सरवत आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया है तो हमने काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने लेट ही ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा एक्चुअल में कोई बात, बताइए। हाँ बताइए। Zscaler सीखने के लिए सर क्या मतलब सिक्योरिटी की नॉलेज भी होना चाहिए पहले? देखो Zscaler इटसेल्फ सिक्योरिटी का ही कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। तो आपको अगर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्लियर है तो Zscaler सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको Zscaler के लिए सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी ना सीखूं डायरेक्ट Zscaler सीखूं तो भी आप सीख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ना मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टर्म आपके नहीं होंगे। लेकिन आप एक बार कोई फायरवॉल सीख लेते हो तो आपको पता चीज होगा कि यूआरएल फिल्टरिंग क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, डेटा लीक क्या होता है, आपका पॉलिसीज क्या होते हैं, ये सब चीज टर्म आपको पहले से पता होगी। तो जब वहां पे टर्म आपको मिलेगा तो आप घबराओगे नहीं, आप बोलोगे अच्छा ठीक है ये तो फायरवॉल से मिलता जुलता है। तो आपको जब चीजें कोई चीज कोरिलेट कर पाते हो ना तो आपको सीखने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, सो आई बिलीव वी आर गुड, हम काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया आज, राइट? सो यस दिलीप जी कुछ बोल रहे हैं? मोहित जी, दिलीप जी कुछ बोल रहे थे आप? दिलीप जी, पंकज सर, हाँ दिलीप जी को ले लेते हैं क्वेश्चन फिर। हाँ नहीं दिलीप आप बोल लीजिए, फिर मोहित जी को मैं लेता हूँ, आप बोल लीजिएगा। Zscaler का कोई सर्टिफिकेशन भी रहेगा एसोसिएट लेवल या प्रोफेशनल हाँ लेवल? बिल्कुल, Zscaler के बहुत सर्टिफिकेशन है। Zscaler के टोटल आपको सर्टिफिकेशन जो है आपका Zscaler इंटरनेट एक्सेस का सर्टिफिकेशन है, एक सर्टिफिकेशन ये है आपका। Zscaler प्राइवेट एक्सेस का सर्टिफिकेशन है, जीपीए जिसको बोलते हैं। तो ये दो सर्टिफिकेशन है, ये दोनों का एक आपका बेसिक मतलब एक आप इसको समझ लें कि एक आपका CCNP लेवल का सर्टिफिकेशन ये दोनों, और इन्हीं का एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। मतलब ये CCNA बोल सकते हैं, एक प्रोफेशनल है, CCNP बोल सकते हैं इसके ऊपर। बट आपको प्रोफेशनल करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये दोनों सर्टिफिकेशन कर लेते हैं GIA का और GPA का, यही दोनों मेन है, तो ट्रस्ट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आप जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं अगले 5-10 ईयर तक का। और एक बार सर्टिफिकेशन करेंगे तो आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा, आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, राइट? सर्टिफिकेशन के बाद तो GIA GPA दो सर्टिफिकेशन आप कर लेना, अगर कभी मौका मिले तो कभी भी कर लेना। बट उससे पहले आप कोचिंग कब लॉन्च करने वाले हैं? तो इसकी Zscaler के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ आप लोग को। Zscaler का प्रॉब्लम ये है कि इसकी लैब ना $300 Zscaler को देना पड़ता है पर पर्सन, अगर लैब लेना है तो। ये लैब बन नहीं सकता है, ठीक है? तो अगर आपको लैब करना है, Zscaler थ्योरी तो मैं कभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लैब करना है तो आपको Zscaler, मुझे नहीं पे करना है, ये Zscaler का फी है। अगर आप लोग बोलोगे तो अगर 5-4 पीपल अगर तैयार होते हैं कि नहीं जी मुझे लैब लेना है, तो आप लोग Zscaler को पे करके $300 में आप लैब ले सकते हैं। बाकी कंटेंट मैं डिलीवर कर दूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है कि हमने एक वीडियो कोर्स इसके लिए हमने डिजाइन कर रखा है कि Zscaler का, GIA का, GPA का, दोनों का, कि आप लोग वीडियो कोर्स में सारी इंफॉर्मेशन हमने दे रखा है कि कैसे कैसे ये
पूरी लैब के साथ है कंप्लीट, बट उसमें लैब टेस्टिंग इसलिए हमने नहीं देते हैं क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी जीस्किलर पे है, तो फिर आपको ही परचेज करना पड़ेगा। तो जीस्किलर में इसीलिए मार्केट में कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता लाइव, क्योंकि लैब की मतलब प्रॉब्लम है। तो वीडियो कोर्स अवेलेबल है, यू गाइज कैन ऑलवेज टेक द वीडियो कोर्स, और वहां से आप जाकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी मोहित जी बताइए, आप पूछ रहे थे कुछ। सर थैंक यू बस दिलीप जी। थैंक यू कि आपने क्लेरिफाई कर दिया। जी स्किलर तो मुझे समझ में आ गया। चलो एक्चुअली मैं 2 प्रोडक्ट जो सोच रहा था उसमें से अब जी स्किलर पहले कहीं भी नहीं था पिक्चर में, बट अब मुझे लग रहा है कि हाँ जी स्किलर, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं जैसे कंफ्यूज था, तो मुझे वो मोहित लग जी रहा है। कंफ्यूज मत होइए, एक बात मेरी मान लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर भी, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, फिर मुझे 5 साल बाद कभी मिले तो बताना आप, ठीक है। जरूर सर, जी जरूर। स्किलर कर लोगे ना तो मतलब यू विल बी द आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। आपकी जी। डिमांड ऐसे होगी, टिप्स पे होगी। बिल्कुल। हाँ सर बताइए, आप दूसरा बोलिए। जो प्रोडक्ट था वो आपने प्रिज्म बोला, मैं स्ट्राटा प्रिज्मा, मतलब प्रिज्मा तो एक्सेस, प्रिज्मा एक्सेस मैं आपको हाँ, दिखाता हूँ। हाँ प्रिज्मा एक्सेस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल जो मैंने सेशन अटेंड किया था उसमें शायद आपने बताया था ये शायद साइबर सिक्योरिटी या समथिंग क्लाउड नहीं सिक्योरिटी नहीं वाला नहीं कुछ है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ आपको, देखिए। हाँ पालो अल्टो का मतलब ही पार्ट है। हाँ जी। प्रिज्मा एक्सेस है, इसका सैसी सोल्यूशन है। देखिए ये देख रहे हैं आप, प्रिज्मा एक्सेस, ये पॉलो अल्टो का ही पार्ट है, इसका सैसी सोल्यूशन है। तो प्रिज्मा एक्सेस जो है उसके अंदर सैसी है, तो ये पॉलो अल्टो का है। इसी जी जी। तरीके से जो सैसी है एक जी स्केलर का है, तो दूसरा सैसी आपका जी स्केलर का है। तो आप दोनों में से कोई एक कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा, कोई मुझसे पूछेगा ऑनेस्टली कौन करूं, तो मैं बोलूंगा जी स्केलर कर लो भाई। जी स्केलर जैसे सिस्को है ना, तो इस जी स्केलर का मार्केट है, कोई कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी बना लेंगे। जी स्केलर ब्रांड भी तो बोलता है ना कई बार, तो जी स्केलर जी का ऐसा ब्रांड है कि मतलब कि एवरी कस्टमर इज गोइंग फॉर जी स्केलर। तो आंख बंद करके जी स्केलर कर लो, बट ये भी कर ले तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी इट्स अ गुड। जी, नहीं जैसे आप बोल रहे हो ना कि थोड़ा पहले सिक्योरिटी का मतलब फंडामेंटल हाँ रीजन तो है मैं कि ये बिफोर बोलता हूँ जी कि जैसे स्किलर। जैसे जैसे आपको अगर सैसी में जाना है, तो मैं किसी को एडवाइस करता हूँ कि आपको बेसिक सिक्योरिटी फंडामेंटल से पता होना चाहिए। कोई भी एक फायरवॉल पकड़ लो, चाहे आप एएसए कर लो, ठीक है, चाहे आप चेक पॉइंट कर लो, चाहे आप पोलो ऑल्टो कर लो, चाहे आप फोर्टिनेट या फोर्टिगेट जो भी आप बोलना है वो कर लो आप, ठीक है। इन चारों में से एक फायरवॉल कर लो, फिर आप सैसी पे जाना। क्योंकि देखो यार, सैसी जो बना है ना, वो बेस क्या है उसका, बेस तो फायरवॉल ही है ना। फायरवॉल को ही ले जाए क्लाउड में डाल दिया है, कुछ उसको मॉडिफाई कर दिया है, कुछ एडवांस फीचर डाल दिया है। तो आपको अगर ऑलरेडी फायरवॉल आती है, तो योर सैसी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे पोलो ऑल्टो भी आता है प्लस सैसी भी आता है, तो वहां पे सामने वाला बंदा एक बार सोचेगा ना, यार बंदा तो एक खेला खिला है, इसको सारी चीजें आती हैं। तो दिस इज गोइंग टू मेक अ जी इम्पैक्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप जिस कलर नहीं सीख सकते, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको जिस कलर सीखने के लिए। पहली बार जाओगे तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी, उसमें ऐसे ऐसे टर्म है कि आपको लगेगा यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, ये सब मैंने कभी सुना ही नहीं है। रोड वॉरियर, राइट, एसएसएल इंस्पेक्शन, ये सब कभी सुना ही नहीं होगा आपने। तो पॉलिसी, उसमें यूआरएल फिल्टरिंग, उसमें आपका सैमल, तो अलग अलग चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कैश भी, तो आप लोग को समझ ही भी नहीं आएगा कि क्या बताया जा रहा है। तो मैं सभी रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल होना चाहिए। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें पड़ता है। एक बार कोई कोई ना आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, रात दिन उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वैसे ही एक अच्छा इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट लेवल पे आपको, जिसमें पूरी होलिस्टिक व्यू हो, उसको सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ तो आई थिंक, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ आई थिंक आप लोगों के लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, राइट। हमने कोशिश किया आप लोगों के सारे डिस्कशन को मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव बनाने के लिए। बाकी आप लोगों का फीडबैक जैसा होगा देना आप लोग, फिर सर हम देखेंगे। और इसका, हाँ हाँ निरंजन जी बताइए। सर वो ना सर वर्षा भी सैसे यूज करता ना सर, उसका खुद का है क्या वर्षा का? हाँ वर्षा का सैसी भी है, वर्षा का भी सैसी है, वर्षा का खुद का सैसी है, वर्षा का भी सैसी है, हाँ वर्षा का भी सैसी। मेरा क्वेश्चन था कि हम्म जैसे आप कह रहे हो $300 की इसकी लैब मिलती है जो हम्म तो हम मतलब जैसे मान लो बेच में 10 बंदे हैं, तो वो आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब सारे एक्सेस कर सकते हैं ना उस लैब को? आप ये डिपेंड करता है ना कि जैसे अगर मान लेते हैं कि 5 लोग, अगर आप लोग अगर बोलते हो कि मैं हम 5 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि 5 ही हम लैब लें, तब ले सकते हो, या 2 ही लैब ले तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो 300 लेकिन डिवाइड हो जाएगी ना हर उसमें। हाँ तो मैं यही तो मैं इसलिए तो मैं बैच जब भी देता हूँ जेस कलर का, तो लोग ग्रुप में आते हैं कि जी हम 5 लोग हैं, मुझे जेस कलर की ट्रेनिंग चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ कि उस ट्रेनिंग में से एक तो पोर्ट मेरे लिए चाहिए, आप लोगों को बताने के लिए चाहिए ना, मुझे एक तो पढ़ाने के लिए, तो मुझे $300 पे करना पड़ेगा जिस कलर को ना, तो एक तो मैं लूंगा ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, पहली बात, जिसपे पूरी लैब करके दिखा सकूं। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग का इंडिविजुअल होना चाहिए ना, तो आप लोग 2 बंदे मिलके एक लैब करना चाहते हो, 3 बंदे, पिछले बैच में ऐसा हुआ था कि दे वर टोटल 7 पीपल, तो उन्होंने 3 पोर्ट लिया था, ठीक है, 3 पोर्ट लिया था और तीनों लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया था कि ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे, तो दे हैव डन। तो ऐसी चीजें होती है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होती है कि चलो भाई ठीक है, हमने जीएसएल को $900 पे कर दिया और हमें 3 पोर्ट मिल गए और हम अपना कर रहे हैं, और बाकी मैंने एक ले लिया ताकि आप लोग को ट्रेनिंग दे दूं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग चलती है। मैं कई बार कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी देता हूँ, तो मैं ऐसे ही हमेशा कराता हूँ कि चलो जी ऐसे कर लो, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है और लोगों का काम भी हो जाता है। कितने टाइम के लिए सर होती है लैब ये, मतलब कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज देते हैं वो? ये 60 आवर्स के लिए होती है, सिर्फ 60 आवर्स के लिए होती है, 300 की जरूरत 60 आवर्स के लिए। तो यही दिक्कत है बस जिस कलर के साथ, यही दिक्कत है जिस कलर के साथ। तो अगर 2 लोग करेंगे तो 30-30 घंटे मिलेगा आपको करने के लिए लैब। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे लाइन अपनी नेटवर्किंग की पे फिर अगर इसमें जाते हैं हम, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन तो इस तरह से होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये मतलब इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नए मतलब या तो लाइन चेंज करके आए हैं या कुछ इस तरह से आए हैं, तो अरे नहीं नहीं सरवत जी, ऐसी दिक्कत नहीं है। दिलीप बोल रहे हैं, सरवत दिलीप बोल रहे हैं, राइट? हाँ मतलब मैं मतलब सरोज जी ऐसा दिक्कत नहीं है, दिलीप जी मैं आ रहा हूँ। सरोज जी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मतलब कि मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, राइट, आपके पास नॉलेज है एंड यू थिंक कि लाइक मैं अपनी नॉलेज जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। इंटरव्यूअर क्या सोचता है उससे छोड़िए ना। आपके साथ विष्णु जी ने जो एग्जांपल दिया, 31 इंटरव्यू में ही रिजेक्टेड, 31 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, तो आप अपना काम करो, इंटरव्यू को रिजेक्ट करने दो। आपको रिजेक्ट करने से आपका कुछ हो रहा है क्या? आपको जानता है, आप गए ठीक रिजेक्ट किया, मेरे को भी कितने लोगों ने कितनी बार इंटरव्यू में रिजेक्ट किया है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कभी इंटरव्यू देना छोड़ता ही नहीं हूँ भाई, इंटरव्यू देते रहो, मेरा फर्ज है इंटरव्यू देना। मेरे को इंटरव्यू देने 4 क्वेश्चन तो पूछेगा मेरे से, उसको मैं लिख लूंगा, अगली बार वो 4 क्वेश्चन मेरा बढ़ गया और जो मुझे नहीं पता था, तो उससे आपको घबराना ही नहीं है। राइट पंकज सर, विष्णु हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मतलब हो सकता है थोड़ा सा ये गलत लगे, लेकिन मतलब मैंने एक चीज और की थी। मैं क्या करता था, एक अपने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन डाल ली थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, जो कि जिससे किसी को इंटरव्यूअर को पता नहीं चलता कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड करता था, और रिकॉर्ड करने के बाद में वो इंटरव्यू जैसे रिकॉर्ड हो गया, अब जो मेरे सीनियर हैं, जैसे अभी मैं आपके टच में हूँ, जैसे ही उस टाइम पे और लोग जो मेरे टच में थे, तो वो रिकॉर्डिंग में उन लोगों को भेजता था और उनको बोलता था कि इसको जज करो और मुझे इसमें कहाँ गलत कहाँ सही, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। तो वो जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो थे, उन वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, नहीं सही बात है, अच्छा स्ट्रेटजी आपने अपनाया, ये बहुत अच्छा है, ये भी होना चाहिए, लोगों को करना आना चाहिए। सो ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। सो विशाल सर, व्हाट डू यू थिंक, शैल वी कंक्लूड दिस मीटिंग? आप कंक्लूड कर दो। I'll take 5 minutes quickly. Okay. तो मैं सबका ये सजेशन लेना चाहता था कि हम पंकज जी, मैं, बाकी लोग भी बात कर रहे थे। सो कोर्सेस तो चलते रहेंगे, वो भी होता रहेगा, लेकिन 2-3 चीजें जो हमें हेल्प करेंगी, जो इनरोल होते हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ कोर्सेस करते हैं, इन जनरल भी। एक तो हम ये सोच रहे थे पंकज सर की इंग्लिश असिस्टेंस बेसिकली, ठीक है, जो हमारे इनरोलीज हैं, जो हमारे साथ कोर्सेज कर रहे हैं, उनको अगर कुछ इस तरह का इश्यू आता है, जो बेसिक प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं चलाएंगे अपन, बट जहां कॉम स्किल्स में थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें थोड़ा बेहतरी की गुंजाइश है, जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के। सो वी वुड लाइक टू मतलब ये सजेशन ले रहे हैं अभी सबसे, जो लोग हैं सेशन में, क्योंकि बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो गया, तो आप लोग अपने सजेशंस जो है पंकज जी को या फिर अभिषेक जी को या फिर यहाँ मैसेज में भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हमें करना चाहिए जिससे हम हेल्प कर सके आप लोगों की इंग्लिश कॉम स्किल्स, रिटन स्किल्स, प्रॉब्ली टू एन एक्सटेंट ओनली प्रोफेशनल बेटर करने में। दूसरा, उसमें एक और मॉड्यूल जो हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू असिस्टेंस, मॉक इंटरव्यू टाइप से, जो पंकज ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से, सो दैट पीपल हु get enrolled with us, we can help them पंकज टेक्निकल क्वेश्चंस पे और इन जनरल कॉन्वर्सेशंस पे मैं, अभिषेक जी, ये लोग हेल्प करें।
और तीसरा हमारा जो GYNet टेक्नोलॉजीज का जो वेबसाइट है, उसमें हम एक ब्लॉग शुरू करें जिसमें हम ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन तो देते ही रहेंगे न्यू एंड अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में, बट जो अपकमिंग जॉब पोस्टिंग्स है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, जो सर्टिफिकेशंस हम ऑफर करते हैं उनके बारे में भी एक रेगुलर अपडेट वहां रहे, ताकि आप इधर उधर ज्यादा ना जाएं। हम मेटा लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे वहां। मान लीजिए जैसे अभी पंकज ने दिखाया आपको गूगल पे, फॉर एग्जांपल एक जगह दिखा रहा था गूगल पे कि CCNA की 3000 प्लस जॉब्स है नोएडा में। उस तरह के जो है चीजें हम अपडेट करते रहे, ताकि आपको वो चीजें ढूंढने में थोड़ी आसानी। आप गूगल पे डालते हो तो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि लोग बिखर जाते हैं, हमें अपने काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो एक एक्टिविटी वहां करने की हम सोच रहे हैं। अब आप इस पे आप लोग अपने सजेशन दीजिए कि ये करना ठीक होगा। श्याम जी का सजेशन आया है कि इट्स वेरी लाइक गुड इनिशिएटिव, मॉक इंटरव्यू और कॉमन स्किल्स होना चाहिए एंड दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल। सो फर्स्ट रिएक्शन आया। हाँ जी, कोई बोल रहे थे आप लोग, बताइए। दिलीप, अलीम जी सर, होना चाहिए सर, है ना, एक कॉम स्किल्स का और एक टेक्निकल ना, जिससे क्या है कि सर कुछ चीजें पता चलेगी कि हम अब कहाँ पर हमें मतलब और मेहनत करनी चाहिए, किस चीज पे हमें सर और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सर। हाँ, बेसिकली आइडिया ये है कि भाई सिर्फ कोर्स करा के आपसे पल्ला नहीं झाड़ लेना है। कोर्स करने के बाद उस कोर्स हमसे करने का आपको एक फायदा मिले। और फायदा क्या है कि एक तो आपका नॉलेज में जो है एनहांसमेंट हो, दूसरा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के परसेंटेज बढ़े। अगर उसमें भी हम थोड़ा सा हेल्प कर पाए तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली। So Vishal sir, like very positive reactions coming, like Sabrat and like Vishnu, Dilip, everyone is like, and many people are talking. It's a good. So it's up to you now, right? So आप इसको formulate करके and हमारे पास already more than 2000 people connected हैं जो different courses हम किए हैं. जितने ज्यादा लोगों की हम हेल्प कर सके। हाँ, तो इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी चार्जेबल। आप लोग से कोई चार्ज नहीं ना, हम एक फॉर्मल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड हम मॉक इंटरव्यूज में करेंगे एंड हम कैरियर काउंसलिंग तो हम करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जनरल डिस्कशन, क्योंकि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जहाँ पे सब आकर ना अपनी जितनी प्रॉब्लम है, एक होना चाहिए मेंटरशिप। लोगों को ना मेंटर ही नहीं मिलता मार्केट में कि भाई कोई इनको बताने वाला नहीं मिलता है। तो वी डोंट वांट टू हाइड द सिस्टम, जो स्किल्स को हाइड नहीं करना, हमें उसको स्प्रेड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ग्रो करें, क्योंकि हमारे कंट्री में डे बाय डे हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना है, इंजीनियर्स की डिमांड है। सो वी वांट टू बिल्ड द नेटवर्क फैक्ट्री, जहाँ पे हमारे पास इंजीनियर्स आए और इतने क्वालिटी इंजीनियर्स आए कि वहां से जब निकल के जाएं तो भाई कहाँ से आप आए हो, तो भैया हमने यहाँ से थोड़ा सीखा है और लोगों ने हमें बताया है, तो पीपल विल स्टार्ट शोइंग ट्रस्ट। तो ये हमारा विजन है लॉन्ग टर्म में। तो लेट्स सी कैसा हम कर पाते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट क्या होता है फ्यूचर कोई नहीं जानता है। पंकज सर, विशाल सर, और ऐड करना चाहूंगा मैं, जो हम वो बात कर रहे थे जॉब पूल की, उसमें वी विल आल्सो ट्राई एंड जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में अवेलेबल है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बट सिर्फ उनका मतलब एंट्री पॉइंट आपका किसी भी इंटरव्यू के लिए क्या होता है, आपका एक ढंग का रिज्यूम हो। बट कुछ लोग या तो पेड सर्विसेज में नहीं जाना चाहते, जो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। आप टाइम्स जो है या फिर naukri.com वगैरह पे जाओगे तो इनके रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज बहुत महंगी है। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं कुछ जो अच्छा रिज्यूम लिखते हैं और कंपैरेटिवली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस पे लिखते हैं। तो उसका फर्स्ट लेवल हम ये करना चाहेंगे। पंकज, आप थोड़ा सा ऐड हम एक काम कर सकते हैं सर, मैं ऐड करता हूँ कि हम ना सैंपल रिज्यूम कुछ बना लेते हैं, जैसे मल्टी स्किल्स के लिए क्या होना चाहिए, राउटिंग स्विचिंग के लिए क्या होना चाहिए। हम अपने जितने भी हमारे साथ जुड़े, हाँ फॉर्मेट करा के देना स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो वहां रखें और फिर उसमें थोड़ा बहुत असिस्टेंस कर सके, जहां ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लेवल का वो एक्सपर्टीज चाहिए होगा, तो हम आपको गाइड भी कर देंगे टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स, रादर देन कि आप 3000 रुपए के रिज्यूम लिखवा। राइट। तो वो काउंसलिंग सेशंस में हम उसको जो है आपको गाइड कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये 3 सजेशंस थे मेरे तरफ से। एक अच्छा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। हाँ जी बताइए, एक करके। हाँ जी बताइए, कोई एक बोलिए, 3 लोग बोल रहे हैं, बताइए कोई एक चीज, एक बताइए कौन बोल रहे हैं पहले। अरमान बोल रहा हूँ। हाँ जी अरमान बताइए। सर मेरा ये भी सजेशन था कि एक कम्युनिटी बनेगी GUINET की, जो आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स है, दोज हु आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड, एंड इफ दे कैन वॉलंटरी कंट्रीब्यूट टू मेंटर द न्यू स्टूडेंट्स, जो न्यू बैचेस आपके आते हैं, जिनको फ्रेशर्स है, उनको अगर वो खुद भी आपके साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट या वॉलंटरी अगर वो खुद भी मेंटर कर सके, मतलब आप लोग तो है ही,
बट यू लाइक अगर आप 3-4 लोग कर रहे हैं तो दैट इज वेरी लिमिटेड, राइट? अगर ये कम्युनिटी को ग्रो किया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट अरमान, ये ऑलरेडी है दिमाग में, बट उसके लिए ना एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की जरूरत है कि उतने मेंटर्स हमारे पास अवेलेबल हों जो हफ्ते में 3-4 घंटे निकाल सके हमारे मेंटीज के लिए। तो वो हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि सर ऐसा विल होता है कि जैसे इफ आई हैव गॉट समथिंग फ्रॉम GUINET, ठीक है, तो मुझे रिटर्न बैक करने के लिए मेरे अंदर विलिंगनेस होगी कि भाई मैं भी GUINET को कुछ दूं थ्रू GUINET टू अदर स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई ओपन कम्युनिटी होना चाहिए जहाँ पे हर कोई आके। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑलरेडी अरमान जी, ये हमारा ये जो सेशन था ना, इसका आज फाउंडेशन है और यही हम करने वाले हैं। सो हमारे जो अभिषेक सर हैं, ऑलरेडी कुछ लोगों को अप्रोच किया था ओल्ड हमारे जैसे हमारे कुछ जैसे गजेंद्र जी हुए, जैसे सौरभ जी आए थे, हमारे रंजीत जी आए थे, तो दे ऑल आर डूइंग वेल। जैसे अभी हमारे ये चले गए, क्या नाम था अभी, हाँ पाल सर थे, ठीक है। तो कई लोग ऐसा थे जो हमने उनको मैसेज किया था, राइट, कि लाइक दे आर लाइक नो ऑलरेडी मेंटर, वो अच्छे कर रहे हैं अपने करियर में एंड दे ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कमरजीत भी हैं, राइट, सो ही आल्सो लाइक डूइंग गुड। सो सब लोग, जैसे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कई लोगों का टाइम कंस्ट्रेंट होता है, नहीं आ पाते हैं यार, तो हम चाहते हैं कि ये जो चीजें है ना, रुकना नहीं चाहिए। हम एक बार कनेक्ट हुए तो वी वांट टू एक्सचेंज आइडियाज, अलग अलग लोग आए, अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर लोगों का इससे एक बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो डेफिनेटली हम इसको करेंगे और हम जल्दी इसको टूल पे भी लाएंगे, हम डिस्कॉर्ड भी लाएंगे जहाँ पे कम्युनिटी हमारी क्रिएट होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। इट्स ऑल इन आवर पाइपलाइन कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। टिल देन इंडिविजुअल लेवल पे तो कर ही रहे हैं। हाँ, अभी तो कर ही रहे हैं, जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है अभी तो हम कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, राइट। So I think Vishal sir, we are good, and I really appreciate everyone, Abhishek sir, you and every participant supports for today. हमने काफी अच्छा discussion किया, so I believe we should close for today, and we'll again line up with another session in the future, and we'll again keep in touch and do such kind of discussion. Okay? Right. We'll have it floated out on social media communities. Yes. So thank you so much everyone, and really appreciate, and I appreciate your time and patience. जो भी आप लोगों ने बोला हमें सब ध्यान में है, and we'll try to do more as per your suggestions in future जो भी हम प्रोग्राम करेंगे. So have a great evening. Good night to everyone. Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. Good night.